والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں, زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اب کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے. نہیں کی تھی تو آپ کھا پی نہیں سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے اور بھلے کھا پی لیں, افطار گھاٹے میں افطار کر لیں. مناسب یہ ہے کہ نیت ثواب کے لیے کریں نہ کہ افطار یا کھانے پینے کے لیے. ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں. جو حرمین طیبین کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں تو مسجد الحرام شریف میں, مسجد نبوی شریف میں, وہاں بھی یہ نیتیں کرنی ہیں تو ثواب بھی تو بڑھ جائے گا نا. مسجد حرام میں جہاں کعبہ ہے تو وہاں 1 کا لاکھ, تو لاکھ اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد نبی شریف میں 50,000 کا. اور مزید یہ کہ کھانا پینا, آب زمزم شریف پینا بھی جائز ہو جائے گا, ورنہ نہیں پی سکتے. آب زمزم بھی نہیں پی سکتے. مسجد الحرام میں اعتکاف کی نیت ہو تو پی سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1447 ہجری کے شعبان شریف کی آج 19ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول, عاشقان درود و سلام جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں. انشاءاللہ بھولنے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ عزت نفس بڑی قیمتی چیز ہے, اگر اس کے بدلے ہیروں کے پہاڑ بھی مل رہے ہوں تو ٹھکرا دینا. امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز ہے. پہلے تو عزت نفس کیا ہے, نام تو بہت سنا ہے نا. عزت نفس کے معنی خودداری یا ذات, یعنی اپنی عزت, اپنی ذاتی عزت, اس طرح کے اس کے معنی ہیں. یہ مطلب ظاہر ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یہ بچہ بھی عزت نفس رکھتا ہے اپنی, سب کے سامنے جھاڑ دو تو بعض اوقات اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے. اکیلے میں
झाड़ो तो इतना वो नहीं उसको फीलिंग जितना सबके सामने होगी। तो बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चे की नफ्सियात को परख कर उसकी तरबियत करें। सबके सामने उसको इस तरह हंसी मत करते रहेंगे, उसकी मतलब यानी कि तजलील करते रहेंगे तो बोलेगा कुछ नहीं लेकिन दिल में रख लेगा। ये चांस है इसका कि जब देखो मेरा बाप या मेरी माँ सबके सामने मुझे जलील करते हैं, तो ये बड़ा होकर ये अल्फाज के सांचे में अपने जज्बात को ढाल कर हो सकता है मसाइल का अंबार खड़ा कर दे। तो इसलिए बच्चों के लिए भी ये एहतियात जरूरी है। बहरहाल ये कि इज्जत नफ्स वाकई अपनी जगह एक हैसियत रखती है। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है, अपनी हाजतें इज्जत नफ्स के साथ तलब करो, क्योंकि सब काम तकदीर पर चलते हैं। हवाला कंजुल उम्माल हदीस नंबर 16805। तो इसकी शरह जो है हदीस पाक की फैजुल कदीर लिल मुनावी में कुछ इस तरह है। किसी और हदीस की शरह में इन्होंने गालिबन ये बयान फरमाया या किसी और किताब के हवाले से। तो तलब में फरमाते तलब में हद से ज्यादा भाग दौड़ और हुसूल की हिर्स में पढ़कर अपने आप को जलील मत करो, बल्कि इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए नरमी और वक़ार के साथ तलब करो। नहीं किसी से चीज भी मांगनी तो ऐसा नहीं वो ऐसा बार बार बोल के भी आदमी वो अपनी वैल्यू डाउन कर देता। तो अपनी इज्जत को संभाल कर काम करना है। तो नरमी और वक़ार के साथ तलब करो। ख्वाहिशात के आगे खुद को बेवक़अत ना बनाओ, यानी अपना काम हो जाए बस, अपनी इज्जत का जो होना हो जाए। यानी अपनी वक़्त, अपना वक़ार, अपनी इज्जत को भी मतलब मलूज़ खातिर रखो, तो संभाल कर रखो, क्योंकि जो चीज मुकद्दर में लिखी जा चुकी है वो तो होकर रहेगी और जो मुकद्दर में नहीं है वो कभी नहीं होगी। लिहाजा हद से ज्यादा मशगूल हो जाना बेफायदा है। इसका नतीजा सिर्फ जिस्मानी तकलीफ और गमों की ज्यादती के सिवा कुछ नहीं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस मुबारका और इस मजमून की दीगर अहादीस मुबारका जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, इन अहादीस में तलाश व तदबीर की तरफ हिदायत फरमाई, मगर हुक्म दिया कि शरीयत व इज्जत का पास रखो, लिहाज रखो, तदबीर में बेहोश व मदहोश ना हो जाओ। दस्त दरकारो दिल बायार, तदबीर में हाथ लिखा हो काम की तरफ, जबकि दिल तकदीर के साथ हो। अपने सबब जो है असबाब है उनको मत छोड़ो, काम अपना जारी रखो जो भी करना है, लेकिन इसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ना है कि जो मुकद्दर में होगा वो ही होगा। जाहिर में उधर, बातिन में इधर। जाहिर में अपने असबाब को ही पेश नजर रखना है, काम करना है, खाना खाना है तो अब ये इंतजार के खुद निवाला मुंह में चला जाएगा नहीं, हाथ उठाओ मुंह तक ले जाओ। अब ये अंदर जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो जाएगा, यूं समझ लो। असबाब आप पूरे कर लो, तो बातिन की तरफ नजर रखो। असबाब का नाम मुसब्बिब से काम, सबब तो खाली नाम को, असल जो मुसब्बिब है करेगा वही जिसने असबाब को पैदा किया, अल्लाह पाक। यूं बसर करना चाहिए, यूं अपना गुजरान हो, यूं जिंदगी यूं गुजरे। यही रविश है, खुदा है, यही मर्जी खुदा, यही सुन्नत अंबिया, यही सीरत औलिया। हिदायत का रास्ता यही है और यही अल्लाह भी चाहता है कि सबब भी ना छोड़े बंदा और मुसब्बिब पर उस पर रब पर अपनी नजर भी रखे। और यही सुन्नत अंबिया, सीरत औलिया, नबियों और वलियों ने सब ने ऐसा किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
There's a large number of youth traveling abroad for education. They're surrounded by problems such as jobs alongside studies, the burden of high seas, and the pressure of anxiety, which causes depression and anxiety amongst the youth. We request Amir Ahl Sunnah to provide a guidance in how the youth can strengthen their alliance with Allah Almighty to stay away from despair, and also give us a cure to avoid anxiety. نوجوانوں کی تعداد ہے جو بیرون ملک تعلیم کے لیے سفر کرتی ہے. وہاں پڑھائی کے ساتھ نوکری، مہنگی فیسوں کا بوجھ اور مستقبل کے دباؤ جیسے مسائل نے انہیں گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں مایوسی اور انزائٹی، بے چینی کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے. امیر اہل سنت رہنمائی فرمائیں کہ نوجوان اپنا بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر کس طرح مضبوط کرے کہ وہ مایوسی سے دور رہے اور انزائٹی یعنی بے چینی سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ لمبا ہاتھ ماریں گے تو مسائل تو ہوں گے. ابھی عزت نفس پر جو بات ہوئی نا، اس میں بھی کچھ اس طرح کے مضامین ہیں، مسبب پر نظر رکھے اسباب. اب یہ جو وہاں دین سیکھنے تو بندہ جاتا نہیں ہے باہر ملکوں میں، عام طور پر دین تو یہیں سیکھتے ہیں نا اپنے وطن. جیسے پاکستان میں جتنا دین سکھایا جاتا اتنا باہر تو نہیں سکھایا جاتا. بھلے آپ کسی ایسے ملک کا نام لو، سمجھتا ہوں مطلب کئی اسلامی ممالک ہیں جہاں دین سکھایا جاتا ہے، لیکن جو دین وطن عزیز پاکستان میں سکھایا جاتا ہے نا، اب یہ سب کو چونکہ تجربات نہیں ہے، معلومات کم ہے، وہ سمجھتے وہاں یوں یہاں یوں. جو یہاں ہے وہ کہاں ہے. حقیقت بولتا ہوں، جو دینی ماحول پاکستان میں ہے دعوت اسلامی کے تعلق سے، تو وہ کہیں بھی نہیں ہے. اس طرح کا ماحول، اتنی آسانیاں دین کی خدمت کے لیے اللہ کی رحمت سے، یہ اور کہیں آپ کو دنیا میں کہیں بھی شاید نہیں ملیں گی. اتنی آسانیاں ہیں. اللہ ہمارے وطن عزیز کو نظر بد سے بچائے، سلامت رکھے، عالم اسلام پر اللہ پاک رحم و کرم فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ جاتے ہیں صرف دنیا سیکھنے کے لیے عام طور پر، اور دنیا کمانے کے لیے. تو یوں یہ غریب آزمائشوں میں آتے ہیں، پھر یہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں. یہ ہوٹل کے بیرے بنتے ہیں، بعض اوقات اور بھی گھٹیا کام بھی کرنے پڑتے ہوں گے. سارے خرچہ تو اٹھانا ہے نا، پورا کرنا ہے. یوں کر کے وہ سیکھ کر پھر وطن پہنچیں نہ پہنچیں، وہیں گھر بسائیں. تو ہے مطلب اس میں آزمائش تو ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں تو پھر انزائٹی کا جو بتایا، بے چینی، بے قراری وغیرہ، تو یہ تو ہونی ہے. اضطراب تو کاش غم مدینہ میں اضطراب ہو، مدینہ شریف کی حاضری کے لیے بے قراری ہو، تو کیا بات ہے. اللہ پاک مطلب ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم دین بھی سیکھنے کی سعادت بخشے، اور جو بھی تقاضے ہیں اس کے مطابق دنیا کے علوم بھی حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس دور میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ عصری علوم بھی بندہ حاصل کرے، لیکن وہی شریعت کے دائرے میں. دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، سمجھے، انگلش بھی سیکھنی ہے. اب دنیا میں غالباً انٹرنیشنل لینگویج یہ انگلش ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یوں مطلب یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، مگر اب دین نہیں سیکھتا نا، مشکل یہ ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں پتا. اب دنیا بھر کے کس فلاں ملک کا جغرافیہ پوچھ لیں، اس کو ہسٹری پوچھ لیں تو اس کو آتی ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ نہیں آتا. اتنی بڑی بک انگلش کی وہ کھول کے پڑھ رہا ہے، بولو قرآن پڑھنا تو اس کو نہیں آتا. اب آپ بتائیے یار، یہ کوئی انصاف ہے؟ یا مولانا تو یار کیسی باتیں کرتے، تو یار مسلمان سے بات کر رہے ہیں، تمہیں قرآن نہیں آتا، بڑی بڑی کتاب ہے، پھر بولتے میں ادھر جاؤں نہ ادھر جاؤں. تو پہلے یار اپنے گھر کی تو خبر لو، گھر میں جو ہے اپنے دل جو گھر ہے نا، اس میں کیا کیا بھرا ہے یہ دیکھو نا، اس کو صاف ستھرا کرو، اس میں دین بھرو، قرآن بھرو، سنت بھرو، اللہ اور رسول کی محبت بھرو، علم دین بھرو. تو بعد میں وہ دوسری بھی باری آئیں گی. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، سب کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری
آخرت میں بہتری، آخرت کی بہتری کس میں ہے؟ دنیا کی بہتری تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، باہر جا کر ہی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے. یا ایک چوٹ لگانے کے لیے کسی نے ایک چٹکلا بنایا ہے، وہ اس کے حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک صاحب اپنے پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ میں فلاں ملک جا رہا ہوں روزی کمانے کے لیے. پیر صاحب اس کو سیاف کرنے گئے اور بعد میں جب یہ رخصت ہو رہا تھا مریدین کا تو فرمایا کہ بیٹا وہ ادھر کے خدا کو میرا سلام بولنا. یہ وہ جھٹکا ہے، چوٹ. تو وہ چونکا مرید، بولا پیر صاحب آپ کیا فرما رہے، خدا تو ایک ہی ہے. تو فرمایا کہ میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے. جو خدا تمہیں یہاں روزی دیتا ہے وہاں بھی تو وہی روزی دے گا. تو وہاں کیا لینے دوڑے ہو تم یار، یہاں بھی تو روزی ملتی ہے نا، بھوکے تو نہیں مرتے. تو حرص جو ہے یہ لیے پھرتی ہے. اللہ پاک نے ہر جگہ روزی دینے والا ایک ہی ہے نا، اللہ پاک ہے، خیر الرازقین، سب روزی دینے والوں سے بہترین وہی ہے. تو اس کا در چھوڑ کر بندہ کہاں جائے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت توجہ سے سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. جو شخص صرف دنیا کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو پراگندہ منتشر کر دیتا ہے اور اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا حصہ ملتا ہے جتنا اس کے لیے ہے، جتنا اس کے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اور جو شخص آخرت کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے معاملے کو اکٹھا کر دیتا ہے، منتشر نہیں فرماتا، بکھیرتا نہیں بلکہ اکٹھا فرما دیتا ہے، اور اس کی مالداری کو اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس خاک آلود ہو کر آتی ہے، نہ دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے. اس کو دنیاوی مثال میں یعنی سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جیسے کہ یہ دیکھا بھی ہے کہ جو مطلب جتنا دنیا کی حرص کرتا ہے، ہوس کرتا ہے دنیا کی، دنیا اس کو اتنا ہی تنگ بھی کرتی ہے. اس کے لیے اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اتنے ٹینشن کریٹ ہوتے ہیں اس کے. اور جو دنیا سے دور رہ کر بچا کر اللہ سے لو لگاتا ہے، دنیا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس کے قدموں میں لوٹتی ہے. یہ سب دیکھی والی چیزیں. ہم اولیاء کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ آج ان کے مزاروں پر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی ہوتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، دور دور سے سفر کر کے ان کے مزارت پر حاضریاں دیتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا. تو آج بھی ہمارے غوث پاک کو لے لو، ہمارے غریب نواز کو لے لو، ہزاروں اولیاء کرام ہیں، ان کا کیوں مطلب مان کرتے ہیں، کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ انہوں نے دنیا کو لات ماری. بڑے بڑے دنیا دار، سرمایہ دار، مالدار ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں ان کے مزار پہ. حیات میں تو جو ہو سو ہو. تو یہ اور بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے کر و فر والے آئے، ان کی قبریں کہاں ہیں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ فلاں بادشاہ کی قبر کہاں ہے، فلاں شہنشاہ کی قبر کہاں ہے. کیا پتہ؟ کچھ بھی نہیں پتہ. نہ ان کو کوئی اصالہ ثواب کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو یاد کرتا ہے. اور اولیاء کرام صدیاں بیت گئیں، لوگ یاد کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں. مثال یزید بہت بڑا، اس وقت تو اس کے پاس اقتدار تھا نا، بہت بڑا مانا جاتا تھا نا. آج اس کو کون اصالہ ثواب کرتا ہے؟ اگر اس کا نام بھی ہے تو بدنام، نام ہے لیکن بدنام ہے. یزید پلید. امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کوئی دنیا کا ظاہری اقتدار تو نہیں تھا، بظاہر آپ شہید بھی ہو گئے اور یزید جیت گیا جیسے، لیکن وہ جیتا نہیں تھا، حقیقت میں ہارا تھا. اصل جیت تو امام حسین کی تھی کہ ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، سید الشہداء کہتے ہیں، مظلوم کربلا بولتے ہیں، کوئی اصالہ ثواب کرتے ہیں، کتنا اصالہ ثواب کرتے ہیں. بچے کی زبان پر ان کا نام عقیدت کے ساتھ ہے، اور اس کا نام کو اس کو بھاؤ نہیں پوچھتا. اس کا
बड़ा बादशाह, इसकी कब्र कहाँ है किसी को नहीं पता, कब्र है कहाँ, आया कब्र सलामत भी है या नहीं, इसका निशान भी बाकी नहीं, सब मलिया मेट हो गया। तो यूं मतलब ये कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु अगरचे बज़ाहिर वो नजर आए कि जीता, हकीकत में इमाम हुसैन ही जीते कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। और आज भी उसका इक़्तिदार चंद लोगों पर था, इमाम अली मकाम का इक़्तिदार, इनकी हुकूमत आज भी हमारे दिलों पर है और करोड़ मुसलमानों पर इनकी हुकूमत है, क़यामत तक जारी रहेगी, हत्ता कि जन्नत के नौजवानों के भी आप सरदार हैं। दुनिया को इन्होंने मुंह नहीं लगाया, तो जो दुनिया को मुंह लगाता है दुनिया उससे खिदमत लेती है, और जो दुनिया को ठोकर मारता है दुनिया उसके पीछे हाथ बंद कर देती है, जो कदमों में लौटती है। हम बस समझो और गौर करो। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, दुआ मुस्तफ़ा है, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, यानी ए अल्लाह दुनिया को हमारे गमों का महवर ना बना। एक और दुआ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न, ए अल्लाह मैं रंजो गम से तेरी पनाह मांगता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी SMS के ज़रिए एक इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रही हैं कि मैं घर में नमाज, रोज़ा और ज़िक्र इलाही करती हूँ, तो घर वाले कभी ये कह देते हैं कि ये बहुत परहेज़गार है, और अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने भी मेरी तारीफ़ करके मुझे अच्छा बताते हैं। ऐसी तारीफ़ सुनकर मेरे दिल में कभी खुशी भी महसूस होती है। मेरा सवाल यह है, क्या ये रियाकारी में शुमार होगा? अगर इसमें रिया का अंदेशा हो तो इससे बचने और इखलास पैदा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, खुशी तो हर बार दाखिल होती होगी आमतौर पे, कभी कभी नहीं, और ये खुशी दाखिल होना इसमें तो एक समझो दुनिया में भी एक तरह का इनाम है कि लोग इससे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। हाँ, ये अगर अपना अमल दिखाने के लिए करे कि लोग मेरी इज्जत करें या मुझे तहाइफ दें, मुझे नजराने दें, तब तो ये रिया है कि इस नीयत से इबादत करना कि किसी के दिल में मेरी इज्जत बैठ जाए, लोग या कोई या लोग मेरा एहतराम करें, इनके दिल में मेरी कदर पैदा हो जाए और मतलब ये मुझसे मुतासिर हो जाए कि ये नेक आदमी है, तो रिया। या ये नहीं लेकिन बस एक मुझे माल मिल जाए तो भी रिया। इबादत से हुसूल माल का कसद करना ये भी रिया, या हुसूल इज्जत का कसद करना कि मुझे इज्जत मिले, ये भी रिया, और ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। बाकी अब लोगों का तारीफ करना, लोगों का वाह वाह करना या अकीदत एहतराम करना, तो ये रिया नहीं है, इम्तिहान, इसमें है इम्तिहान कि बंदा फूल जाए। इसलिए मतलब मुंह पर तारीफ करने का तो पूरा चैप्टर इह्या उलूम में एक पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। तो मुंह पर तारीफ करने की मुमानत की भी मुमानतें भी हैं। अब निचोड़ ये है इसका कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी अगर मुंह पर तारीफ की जाए तो ये फूलेगा नहीं, अपने आप को कुछ समझेगा नहीं, दिल में अनजाने तौर पे खुशी दाखिल होना, इसमें तो आदमी का इख्तियार नहीं है, तो ये अपने आप को मतलब फूलेगा नहीं, फूल नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में तारीफ करने में हर्ज नहीं है, वरना ना की जाए, इसकी मुमानत है। हमारे यहाँ तो खैर वो हर एक की खोटी खोटी तारीफ करते हैं, तारीफ भी सच्ची हो, खोटी तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं, खाली मस्के लगा रहे होते हैं, बटर पॉलिश कर रहे होते हैं, खुशामदें कर रहे होते हैं। तो मुझे तजर्बा है ना, शेव डे बंदा वैसे वाला आदमी है, बड़ा आशिक रसूल है,
ना मैं अब वो करता हूँ, एक्सटेंशन करता हूँ, बड़ा आशिक रसूल है, हाँ ये है कि नमाज खाली जुम्मे की पढ़ता है बड़ा आशिक रसूल, कभी कभी तो जुम्मा भी निकल जाता है, बड़ा आशिक रसूल है, 27 का रोजा कभी नहीं छोड़ता, बाकी गोल। तो ये मतलब है कि खुशामदें लोग कर रहे होते हैं, बड़ा दावत इस्लामी का ताउन करते हैं, बड़ी दिन की खिदमत, कभी एक ढीला 1 टका नहीं दिया, ये बड़ी खिदमत करता है। ये मतलब मुझे तजर्बात इसके हैं, मतलब अब खैर हम सब जाते रहते हैं कि यार ये झूठ 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 छुट्टी खुशामद, थू यार क्यों करते हो सर। इन्हें किसी का भी करीब भी दीन के लिए लाना है किसी को, तो उसकी झूठी खुशामद करके लाने की थोड़ी इजाजत है, वो अल्लाह को राजी करना, अल्लाह झूठ से राजी नहीं होता ना। बहरहाल ये के जो भी करे बंदा सच बोले और तारीफ हर एक की करते हुए वो सोचे कि इसकी करूं कि नहीं करूं तारीफ। इसका ये इह्याउल उलूम में गालिबन 3री जिल्द में ये चैप्टर है इसका, गालिबन ना 3री जिल्द में, तो वो पढ़ लेना चाहिए, किसकी तारीफ मुंह पर करे किसकी नहीं करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। फेसबुक लाइव चैट के ज़रिए एडवोकेट मुद्दस्सिर साही डस्का सियालकोट से सवाल कर रहे हैं, क्या किसी नेक इंसान की दुआ या नज़र से इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? दुआ तो दुआ है, दुआ युरुद्दुल क़दा, दुआ तकदीर को बदल देती है। दुआ सिलाहुल मोमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ बिल्कुल, और नजर भी बदल देती है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मिन्ना शरीफ की मस्जिद खैफ में सफ़ों में दौरा फरमा रहे थे, आना जाना कर रहे थे, तो किसी ने उसके हुजूर क्या कर रहे हैं, फरमाया कि मैं किसी अल्लाह वाले की नज़र डलवाना चाहता हूँ, कोई मुझे देख ले, नज़र डाल दे मुझ पर। हालांकि खुद अल्लाह वाले थे, ये जिस पर नज़र डाले बेड़ा पार कर दे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी मनक़ूल है कि आप है ना दौरा फरमाते थे तो कि मुझ पर किसी की नज़र पड़ जाए। तो नज़र बद भी होती है, जो बुरी नज़र भी होती है जो बेड़ा गर्क कर देती है आदमी, और अच्छी नज़र भी होती है जो डूबे हुए बेड़े को तिरा देती है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो प्यारे आका की नजर जिस पर पड़ जाए उसका बेड़ा पार हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स ने कहा कि मैंने बड़े बड़ों को देखा, किसी में कुछ नहीं है। दूसरे ने कहा कि मगर किसी ने तुझे ना देखा, अगर कोई नजर वाला तुझे देख लेता तो तेरा ये हाल ना होता। ये मिरातुल मनाजी में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। ये तो पहले से हमने तो बहुत पुराना बचपनों से सुना हुआ है कि बच्चों को भेजते थे बुजुर्गों के पास, इमाम साहब के पास, कि इसको जरा नजर दिलवा दो, नजर है ना, नजर दिलवा दो। तो ये कि इमाम के साथ हुस्न ज़न के नेक आदमी हैं, नमाज पढ़ाते हैं, या फलां बुजुर्ग फलां पीर साहब कि ये अच्छे लोग माने जाते हैं, तो ये हुस्न ज़न की वजह से कि इनसे नज़र दिलवा लो। तो यूं नज़र अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपको आपने नाम सुना होगा मंजूर अहमद,
नाम होते हैं ना मंजूर अहमद, कभी माना पर गौर किया? अहमद या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मंजूर मैंने जिसको नजर लगी, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर याफ्ता मंजूर अहमद वो कि जिसको सरकार ने नजर डाली है, अपनी मुबारक नजर। तो यूं अच्छी नजर बुरी नजर दोनों होती है। अल्लाह पाक अच्छी नजरें नसीब करे, बुरी नजरों से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी जब मैं अजान दे रहा था अंगूठे क्यों चूम रही थी? जो हमारा छोटा भाई है ना याद रमजान, वो मुझे कह रहे थे तो मैं इसलिए अंगूठे चूम रही थी। अंगूठे चूमने का सवाब भी मिलता है? जी मिलता है। कितना सवाब मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, आप अमीर अहले सुन्नत से पूछ लें। अमीर अहले सुन्नत, हमारा आपसे ये सवाल है कि अंगूठे चूमने से कितना सवाब मिलता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक आता है तो उस पर भी अंगूठा ही चूमते हैं। आंखों तारा नामे मुहम्मद अलका उजाड़ा नामे मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने सिखाया फिर भी सबने अंगूठे नहीं चूमे। मैंने देखे, क्या है यार, बच्चे चूम रहे, बड़े नहीं चूम रहे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज है बच्चों का, और बच्चों के अंदाज सिखाने वालों का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर अंगूठे चूमने पर कितना सवाब मिलता है। तो मैं सोचा, मैंने यूं बोलूं इतना, तो ये गलत हो जाएगा ना, इतना मैं कैसे बोलूं यार। मैं साइज तो नहीं बता सकता कितना होता है सवाब, पर सवाब तो बड़ा ही होता है, छोटा होता है नहीं। सवाब किसी छोटी शय का नाम ही नहीं है कि जिसको वाकई सवाब मिल गया तो वो ज़ाहिर उसको जहन्नम का अज़ाब कैसे होगा। अल्लाह करे कोई एक नेकी भी किसी की कबूल हो जाए तो अल्लाह की रहमत से वो जन्नत में चला जाए, तो क्या कमी है उसकी रहमत में। तो इसमें कोई शक नहीं कि अंगूठे चूमना ये असल ताज़ीम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। जैसे कि हम बुजुर्गों के हाथ चूमते हैं ना, ये क्या है? ताज़ीम है। माँ बाप के हाथ चूमे जाते हैं, चूमने चाहिए, ताज़ीम है। तो ये ताज़ीम के लिए हाथ चूमे जाते हैं, मुस्तहब कार्य सवाब। तो इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूमना, ये अजान में जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, इसकी तो रिवायतें हैं कई मौजूद हैं, बल्कि पिछले दिन उसका तो रिसाला भी मकतबतुल मदीना ने छाया था, और हफ्तावार रिसाला तो बहुत सारों ने, ये रिसाला लाखों ने पढ़ा और सुना, ठीक है ना, जो कारकर्दी मिलती है इसके हिसाब से। तो यूँ अंगूठे चूमने की मुख्तलिफ रिवायतें और इसमें फ़वाइद हैं। आँखों की रोशनी बढ़ना या आँखों की हिफाजत होना, आँखें ख़राब ना होना। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह मुस्नदुल फिरदौस के हवाले से फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुअज़्ज़िन को अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुना, ये दुआ पढ़ी और दोनों कलमे की उंगलियों के पोरे जानिब ज़ेरी, यूं उंगलियों, दोनों उंगलियों के पोरे जानिब ज़ेरी यानी नीचे की तरफ से चूम कर आंखों से लगाए। जब ये सुना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये उंगलियां यूं चूमी और आंखों से लगाई। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। फतावा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 432।
मकासिद हसना सफ़ा 391 हदीस नंबर 1021 पर है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे मरहबम बि हबीबी व कुर्रते ऐनी मुहम्मद इब्नी अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे, वो कभी अंधा ना होगा और ना उसकी आंखें दुखेंगी। तो यूं ये भी बुजुर्गों, ये पुराने बुजुर्गों के, और इमाम हसन बिन अली, अब ये इमाम हसन दिखा है, तो वो तो हसन बसरी कहलाते हैं, उसके लफ्ज़ इमाम नहीं लिखते आमतौर पे, और इनको लिखते हैं हसन बिन अली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुरानी किताबों में, अरबी में, अब तर्जमे में हो सकता है। तो बहरहाल ये कि मकासिद हसना, ये मशहूर मुहद्दिस इमाम सखावी, हज़रत इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह, ये आजकल के दौर के नहीं है कि मतलब जो ये फ़िरका तो वो तबका, ये पुराने बुजुर्गों में से हैं। 902 हिजरी, तो यानी कि समझो कि सदी हिजरी 9वीं 10वीं का आगाज था, और अभी ये 1447 है ना। तो यूं मतलब ये 500 से जायद साल इनको हो गए इस बुजुर्ग को, मकासिद हसना लिखने वाले को। तो इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब इन्हें दलाइल हैं, और मना की कोई भी हदीस नहीं है कि जिसमें मना किया हो कि अंगूठे मत चूमना। तो चाहे अब उंगलियां चूमे या अंगूठे चूमे, दोनों के फजाइल आपने सुने। अच्छा, अब हम लोगों के अंगूठे चूमने ये एक राइज है। अब अगर आप उंगलियां चूमेंगे ना तो लोग ताज्जुब करेंगे और आपसे फिर सवाल जवाब करेंगे। तो इसलिए मतलब मशवरा ये कि सबके सामने चूमे तो फिर अंगूठे ही चूमे। कभी अकेले में ये अदा सिद्दीकी, अदाए सिद्दीकी भले आप अदा कर लें, लेकिन अकेले में सबके सामने नहीं, वरना लोगों से आप निपट नहीं सकेंगे, मसाइल करेंगे लोग। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो ये तो अजान के ताल्लुक से जैसे। अच्छा, इसके अलावा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूमना, इसमें हरज भी नहीं है, मना भी नहीं है ना। इस पे भी अगर ताजीम की नीयत है तो सवाब ही मिलेगा। जैसे कुछ पहले मैंने वजाहत की थी, तो बाद में भी ये बात उठी थी कि तुर्कों का जब मुझे पता चला कि तुर्क सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर ये अकीदत से दिल पे हाथ रखते हैं और सर झुकाते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मुझे मजा आ गया। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि यूं करूँ, समझे। तो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये कि एक अच्छे काम, तुर्कों का इश्क़ रसूल मशहूर है। इन्होंने मक्के मदीने में खिदमत की है, एक अरसे तक खिदमत की है। यानी इतने बाद अब लोग हैं कि अक्ल काम नहीं करती, मैं सही बोलता हूँ। इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो दिमाग काम नहीं करता कि क्या इनकी अकीदत, अब मैंने किस तरह की अकीदत मंद हो गई। यानी मस्जिद नबवी शरीफ की जो तामीरात होती थी ना, पत्थर वगैरह तो मदीने से बाहर तरसवाते थे कि कटिंग शटिंग जो भी करनी है खाली यहाँ लगा देना। अच्छा, लगा कर ये ठा ठा करके हथौड़े नहीं, हथौड़ों पर रबड़ के हथौड़े या हथौड़ों पर कपड़े वगैरह लपेट कर, देखिए आवाज पैदा ना हो। आका सोए हुए तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए, आका को आवाज नहीं जानी चाहिए, तकलीफ। अब वही है, अब बोलो किस हदीस में लिखा है, तो मतलब ये क्या इश्क है, ये इश्क का इनका अंदाज। वरना को कील ठोकना, हाँ बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा दरवाजे और कीलें ठोकने से मना फरमाती थी, नहीं मेरे महबूब आराम फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वैसे आवाज बुलंद करना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, इसकी मुमानत की तो आयत मौजूद है, ला तरफ़ऊ फ़ौक़ सौतिन नबी, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो। तो ये कुरान से साबित है। फिर आगे वो आयत का हिस्सा,
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। यानी ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ के ऊपर बुलंद न करो और इनको ऐसे बुलंद आवाज़ से न पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे से बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सब आमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें मालूम भी ना हो। यूं दरबार रिसालत के आदाब तो ही है, आवाज बुलंद ना हो। तो बहरहाल ये कि तुर्कों की बात आई थी, इनके इश्क के अंदाज को अपनाने में मैंने तो आफियत समझी गई भी, इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा इसमें। अल्लाह चाहे तो इसी अदा को कबूल करके जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन हकीकत है उसकी रहमत चाहिए, रहमत से जन्नत चाहिए। और ये मतलब इस तरह के अंदाज जो है ना, नए नए जदीद अंदाज। अंगूठे चूमना तो नया अंदाज भी नहीं है, अंगूठे चूमने की तो रिवायतें मौजूद हैं अपने पास। ना भी होती बिल फर्ज, या कोई इस हदीस की वो सनदों पर कलाम करता है तो ठीक है, करता रहे, शरन मुमानत इस फेल में नहीं है। और ये कुरान करीम की आयत है, व तो अज़्ज़िरू व तो वक़्क़िरू हो, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो। तो इसके लिए तो मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत तक जो भी नए नए तरीके निकलेंगे ताज़ीम के, शरीयत से ना टकराते हो, तो वो इसके तहत दाखिल हैं, इस आयत के तहत आ जाएंगे। तो हर एक, जैसे तुर्क का अंदाज मैंने बताया वो इधर, तो पाकिस्तान का अंदाज कुछ और, तो फला मुल्क का और, तो ये होते होंगे अंदाज, कोई हर्ज नहीं है। ताज़ीम का अंदाज हो, शरीयत से ना टकराता हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। सलात व सलाम हम खड़े होकर पढ़ते हैं, ठीक है। तुम बोलो साहबा किराम ने कब मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा था, मानते हैं। साहबा किराम ने उर्दू में भी कभी बयान नहीं फरमाया था, किसी बात पर एतराज़ नहीं फरमाया था, समझे, उर्दू में, ठीक है ना। तो ये क्या जायज़ है, मना नहीं है शरीयत में खड़े होकर सलाम पढ़ना, कि ये ताज़ीम मानी जाती है। और ये तो अब तो बिल्कुल पक्की ताज़ीम है, लोग तो अपने टीचर के लिए भी खड़े होते हैं। सर आता है तो वो सब मतलब खड़े हो जाते हैं, बस सर ने कभी नमाज भी ना पढ़ी हो, नाती भी ना हो, लेकिन वो खड़े हो जाएंगे उसके लिए। और कोई बॉस आएगा तो उसके लिए खड़े हो जाएंगे, अफसर आएगा तो खड़े हो जाएंगे। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए खड़े हों तो हजार वसवसे शैतान डाल देता है, किसने किया था और क्यों किया था। कमाल है यार, सोचों पर हैरत है। ताज़ीम किए जाओ, जितनी भी ताज़ीम करनी है बस उलूहियत में मत मोचो, ताज़ीम किए जाओ। जो भी शरीयत से ना टकराए वो ताज़ीम आखिरत में आपकी बुलंदी का बाइस होगी, दर्जे बढ़ाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अभी अंगूठे चूमने के मुतालिक गुफ्तगू हुई और बहुत प्यारे मदनी फूल हमें मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने एक रिसाला भी जारी किया है, अंगूठे चूमने की बरकतें। इसका टाइटल पेज आपके सामने आ रहा है। 28 पेजेस का ये रिसाला है और 27 रुपीज़ पर ये आप मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसमें और भी बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। सुभान अल्लाह। ये अपने मैं तो कई बार बता चुका हूँ कि मेरे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अंगूठे, हम तो घर में अपने माहौल तो यही मिला है, बचपन से चूमते अंगूठे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र आपके सामने 77 तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर चश्मे के मैं काम चला रहा हूँ। करीब का चश्मा थोड़ा डिस्टर्ब करता है आंखों को, तो ये मुझे तो इसी की बरकत लगती है। अंगूठे चूमता रहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अकेले में भी चूमता रहता हूँ, अंगूठे चूमता हूँ। सैयद का नाम सुनकर हाथ चूमने की आदत पड़ गई है। ये भी ताज़ीम का एक अंदाज है, ये मेरा अपने खुद साख्ता है, ये शरीयत से नहीं टकराता। आले रसूल है, नबी की औलाद है, तो कभी नहीं भी चूमता, ये जरूर कि चूमूं, समझे। तो इन एहतरामों की वजह से बस आपके साथ चल रहा हूँ अल्लाह की रहमत से। बड़ों की नजर है तो इंशाअल्लाह बड़ी बिगड़ी बनती रहेगी इंशाअल्लाह। आप भी करके देखें, अंगूठे चुभने का बिल्कुल यानी कि अपना मामूल बना लें ऐसा कि बस पत्थर की लकीर हो जाए। या अंगूठे चूमने, जब भी अजान में सुना अंगूठे चूमने। कभी हाथ मसरूफ होता है, आदमी नहीं भी चूम सकता, तवज्जो नहीं होती तो नहीं चूम पाता, वो अलग बात है। हाथ आलूद होते हैं तो नहीं चूमता, खाना खा रहा है सालन वाले तो मैं नहीं आंखों पर मल लो और फिर ये कि वो कुछ और हो जाए। तो जब यानी कि फ्रेश हो, मौका है, अभी बैठे हो तो अभी चूमने में क्या रुकावट है। असल वो आदत नहीं, एक तो जरा सीरियस नहीं लेते ना, जो काम सीरियस नहीं लेंगे वो नहीं होगा।
सीरियस लेंगे ना, इसको अहमियत देंगे तो ये काम होगा, इजी लेंगे तो नहीं होगा। आप मतलब ये जहन बनाएं कि इंशाअल्लाह अब जब भी अजान सुनूंगा, और तवज्जो रही नहीं रहती, तवज्जो शुरू में खास करके नहीं रहती, जब जिसकी आदत नहीं ना, भूलता रहेगा, तो आहिस्ता 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 जहन बनता रहेगा, तो इंशाअल्लाह अंगूठे चूमने की ऐसी आदत पड़ेगी कि शायद आप नींद में होंगे और अजान हो रही होगी फजर की, तो अंगूठे चूम रहे होंगे, ऐन मुमकिन है। तो आदत होनी चाहिए। वो मेरे साथ छोटा है ना, हसन दादा, मैंने कई बार नोट किया इनको, हम जब नींद से उठाते ना, नींद में होता हो शुरू, मुझे नमाज के लिए उठाया गया है, मैंने कई बार नोट किया इसको। तो इसको उठाते हैं ना, इनके अब्बू पकड़ के नींद से उठा के चला कर ले जाते, ताकि ये थोड़ी नींद उड़े, भी इस्तिंजा वुज़ू करे, नमाज पढ़े, तो ये खुद ही शुरू हो जाते हैं नींद में। तो ये आदत अगर हम बच्चों की भी आदत डालेंगे तो यूं करेगा, अगर बच्चों की आदत खराब करेंगे तो गाने बोलेगा, नींद में भी गाने बोलेगा, या माज़अल्लाह वो नाच करेगा, रक्स भी तो करते ही हैं ना बच्चे। तो नमाज सिखाएं, सुन्नतें सिखाएं, नाते पढ़े, बच्चा नींद में नाते पढ़ता हो, बच्चा नींद में तिलावतें करता हो, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रमजान आया रमजान, रमजान आया रमजान, रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान, खुशियों भरा प्यारा मेहमान आया रमजान आया रमजान, चांद ने दुनिया में सबको बताया रमजान आया रमजान आया, जन्नत के पत्तों से प्यारी हवाएं चलने लगी, देखो रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान, खुशियों भरा प्यारा मेहमान आया रमजान आया रमजान, रमजान में आओ अदा करें गम, झूठ नहीं बोलेंगे कभी गम, फिल्में ड्रामे गाने बाजे, शैतानियों से बचते रहे गम, रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान, खुशियों भरा प्यारा मेहमान आया रमजान आया रमजान, माशाअल्लाह। देखो अब रमज़ान करीम की आमद से पहले इस्तकबाल में ये हमारे यहाँ तो ये माशाअल्लाह मदनी चैनल वालों ने कैसे प्यारे प्यारे फुटेज, नहीं क्या बोलते इनको, शो पीस वगैरह, रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक वगैरह, है ना, दिल बाग 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 रमज़ान हो गया मेरा तो देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले आकर छोटा के चूम लिया, तो मज़ा आ गया, तब दूर हटा दिया, मुझे मतलब मजा आ गया, अनएक्सपेक्टेड था ये, देखा ना मैंने यार, फिर बताया कि भाई यहाँ भी है, माशाअल्लाह, मदीना मदीना मक्का मदीना, रमजान रमजान, अभी तो रमजान रमजान है हमारे इस चार दीवारी में, तो जहाँ मैं बैठा हूँ, तो आप अपने घरों में भी रमजान रमजान कर दें, सजावटें शुरू कर दें, फिर क्या देर लगानी थी यार, इंतजार किसका है। पिछली बार आपने देखा होगा कपड़ा मैंने रखा था जिसपे अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान लिखा था मदनी मुज़ाकरे में, तो वो जहाँ था ये वहां का था, तो अब वहीं छोड़ के आ गया हूँ मैं। माशाअल्लाह जो चीजें ले ली है रमजान की, क्या बात है, माशाअल्लाह, पेनाफ्लेक्स भी ले लिया है, सुभान अल्लाह, दिखाओ तो सही इसमें क्या लिखा हुआ है यार, सुभान अल्लाह, मकतबुल मदीना के माशाअल्लाह पेनाफ्लेक्स भी आ गए, हाथों में भी आ गए, दुकान पे भी आ गए, तो घरों में भी सज जाएंगे इंशाअल्लाह, गलियों में सजेंगे, मेन गेट पर इमारत के सजेंगे इंशाअल्लाह। देखने वाला गुजरे तो बोले अरे भाई ये तो रमजान से मोहब्बत करने वालों का घर है, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, रमजान करीम, मरहबा सद मरहबा, फिर आमदे रमजान है,
माशाअल्लाह उल करीम मकतबतुल मदीना पर ये पेनाफ्लेक्स मुख्तलिफ साइज़ में और मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मुख्तलिफ इसके रेट है। आप जो साइज़ देंगे उस साइज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना आपको प्रिंट करके देगा। इसी तरह खूबसूरत झंडियाँ भी मुख्तलिफ साइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो मकतबतुल मदीना से आप हासिल करें और अपने घर में ये बैनर्स लगाएँ, दुकान पर लगाएँ, ऑफिस में लगाएँ, महल्ले में लगाएँ और रमज़ान की बरकतें पाएँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये किसी ने भेजा है, अब आवाज़ होगी शायद भी खोलूं कैसे कि हमारे इन्हें तैयारी शुरू हो गई है रमज़ान करीम की, सजावटें भेजी है। इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर आ जाइए तो नजर आ जाइए, मैं भेज देता हूँ। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, जल्द आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, जल्द आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान हो, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान हो। जिंदगी में फिर अता, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। आमदे रमजान है, जल्द आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान तू अजीम शान है। तुझ में नाजिल हक ताला, तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, आमदे रमजान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माहे रमज़ान रहमतों, माहे रमज़ान रहमतों और बरकतों की कान है। आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, जल्द आमदे रमजान है, आमदे रमजान है, जल्द आमदे मग़फ़िरत का लेकर आया है पैगाम, आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पैगाम। झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान में गुफ़रान है। आमदे रमज़ान है, आमदे रमज़ान है, जल्द आमदे रमज़ान है, जल्द आमदे रमज़ान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान कादरी है। मेरा आपसे सवाल है कि मेरा एक छोटा सा मार्ट है, तो इसमें बहुत सारे सामान है, छोटे आइटम भी हैं, बड़े भी आइटम भी हैं। तो मैं अगर ज़कात निकालना चाहूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं तमाम चीज़ों का हिसाब किताब कर सकूँ। तो इसका मुझे कुछ तरीका बता दीजिए।
हर चीज़ का हिसाब करना होता है। और सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह के हालात में तो यहाँ तक लिखा है कि शायद ही किसी दिन वो सारी रात या घंटों तक वो सिक्कों की खनखनाहट, पहले सिक्के होते थे, नोट तो नहीं होते थे शायद उन दिनों में, तो वो खनखनाहट के आवाज़, तो वो फिर वो पता चला कि हुजूर हिसाब लगा रहे थे जो भी अपने पास सिक्के वगैरह हैं कि ज़कात कितनी बनेगी। मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बहार शरीफ में मसाइल भी लिखे ज़कात के, है तो मसला तो चाहे लाख चीज़ें हों, हिसाब तो वैसे जब हिसाब लगाते हैं, क्या बोलते हैं वो, अब साल में एक बार तो वैसे हिसाब लगाते हैं ना, कुछ डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग या कुछ क्लोजिंग, तो हिसाब तो लगाते हैं चीज़ों का, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, क्या क्या मंगवानी है, क्या कम हो गई, क्या ज़्यादा हो गई वगैरह। ज़कात के लिए है ना कि अपने पास एक पैसा भी रह गया तो फंस गए, कम हो गया तो ज़कात 100% फिक्स देनी होगी, पूरी पूरी, ज़्यादा चली है नो प्रॉब्लम, कम नहीं जानी चाहिए। है वैसे इसमें आजमाइश तो है, तो कोई अगर ऐसा मुमकिन हो, आप बता सकते हो कि जैसे कि इनका अगलब गुमान है कि मैं जितना उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, कोई ऐसी कोई सूरत हो तो, बाकी छोटी छोटी चीज़ें इतनी होती हैं, किराने की दुकान में इतनी चीज़ें होती है, स्टोरों पर बाद बड़े बड़े स्टोर होते हैं, सुपर मार्केट हैं, इसमें हज़ारों आइटम्स होते हैं, तो अगर कोई रास्ता हो तो, वैसे अभी तक तो वही है जो मैंने अर्ज किया, जवाब उसका, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सलमान आ रही थे सालाना स्टॉक टेकिंग जो लोग करते हैं, तो सालाना स्टॉक टेकिंग के नाम पर भी तो सारा निकाला जाता है, और उसमें ये होता है कि सारा वो इनका असल में अब तो तकरीबन कंप्यूटराइज हो चुका है, कितना माल आया कितना माल बिका, तो अमाउंट से चीज़ें पता चल भी जाती हैं कि इतने रुपए का माल बिक गया, इतने रुपए का माल है। वरना अगर इनको ये पता ही नहीं हो कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, तो ये सालाना स्टॉक टेकिंग कैसे करेंगे? एक व्यापारी आदमी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? एक व्यापारी आदमी अपना लेजर कैसे बनाएगा? एक व्यापारी आदमी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे निकालेगा? कि कहीं मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरी दुकान में क्या है और क्या नहीं है। तो जिस तरह हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाने के लिए एक एक चीज़ लिखते हैं, और अब तो सब तकरीबन कंप्यूटराइज भी हो चुका है। कंप्यूटराइज ना भी हो तो हमारे पास हिसाब किताब तो होता है, वरना तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट या पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास नफ़ा कितना है, मेरे पास नुकसान कितना है। तो नफ़े और नुकसान के लिए जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये स्टॉक टेकिंग जो आप कहना चाह रहे थे, अगर इस पर कोई गौर कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है अगर बड़ा काम है तो फिर इस तरह का निज़ाम बन तो सकता होगा। वल्लाहु अलम, अगर ऐसी कोई आसानी निकलती हो तो 7 करोड़ मरहबा। ये दारुल सुन्नत के एक फतवे का इक्तिबास हिस्सा, ज़कात निकालते हुए असल माल की कीमत और मालियत ने वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ताकि उसी हिसाब से ज़कात का फरीज़ा अदा किया जाए। और जहाँ तक बिलखुसूस माल तिजारत की ज़कात का ताल्लुक़ है, तो किसी भी ताजिर यानी बिजनेसमैन के लिए अपने माल तिजारत की मालियत का हिसाब लगाना, उसकी वैल्यू का हिसाब लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सामान तिजारत ऐसा है कि जिसका हिसाब लगाना वाकई इंतहाई दुश्वार है, जैसा कि सवाल में कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया, किसी ने सवाल किया उसके जवाब में, जैसा कि सवाल में कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया, तो ऐसी अशिया के लिए ज़न्ने गालिब से मालियत का हिसाब लगाया जाए। ज़कात देते हुए ज़न्ने गालिब से थोड़ा ज़्यादा माल का हिसाब रखकर ज़कात दी जाए, ताकि फ़र्ज़ की अदायगी में किसी तरह की कोताही का शुबा भी बाकी ना रहे। तारीख़ इजरा यानी फतवा जारी हुआ 3 शाबान शरीफ 1443 हिजरी,
4 साल पुराना है ये फतवा है, 7 मार्च 2022, 4 साल पहले का ये फतवा है। तो इस ज़न्ने गालिब के लिए उस सूरत बताइए, छोटी छोटी चीज़ें जिनका हिसाब लगाना बहुत दुश्वार है। तो अब उन पर देखिए गालिब ख्याल जम जाएगा कि ये जैसे कि ये 1 लाख रुपए का ये सामान सब बन रहा है, तो अब इसकी ज़कात बनेगी 2500। तो 2500 बनेगी ना, तो अब 3000 दे दे, 2.25 दे दे। यानी ख्याल तो जम गया कि 2.5 है, लेकिन एहतियातन कुछ ज़्यादा दे दे। तो ज़्यादा गया तो मुहावरा है, घी गिरा तो खिचड़ी में, यानी वो नफल सदका हो जाएगा। ज़्यादा जो गया तो है ना, नफल खैरात हो जाएगी, इसमें सवाब मिलेगा। और अगर कम गया तो फर्ज रह जाएगा, इस पे अजाब है। ये दुश्वारी की सूरत में हर बार ये आदत ना बना ले कि वो लमशम मतलब एक अंदाजा लगा लिया कि फिर फर्ज में कोताही ना हो जाए। अब पैसे मतलब कमाना, इसके लिए आदमी हर तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, जहाँ फर्ज अदा करना तो यार ही है। तो भाई जितनी मेहनत करेंगे, गिनतियां करेंगे, हिसाब लगा, तो कंप्यूटर सिस्टम है तो ज्यादा दुश्वारियां न रही, पहले के मुकाबले में कम हो गई। और नोट भी बड़े बड़े, पहले सिक्के छोटे छोटे होते तो इतने सारे सिक्के, और अब तो मतलब 5000 का नोट तो पाकिस्तान में तब बढ़ गया, 5000 का ही है ना, आखिर तक अभी तक 5000 का। तो ये मतलब जैसे कि अब लाख, तो ये 20 नोट हो गए लाख। और पहले लाख रुपए के तो घड़े और तपीले और पता नहीं देंगे भरती होंगी। तो अब आसान हो गया है, इतना दुश्वार न रहा। लिखत पढ़त भी होती है, तो इंशाल्लाह इस तरह आप हिम्मत करें तो जितनी देर लगेगी उतना आपकी नेकियां भी मिलती रहेंगी ना। कि फर्ज के लिए आप कोशिश करने वाले हैं कि मेरा फर्ज अदा हो जाए, तो इसमें जो भी आप लवाजमात इसके होंगे, हिसाब किताब लगाने के, जितना वक्त आप देंगे इंशाल्लाह इसमें सवाब मिलता रहेगा आपको। मायूस क्यों होते? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या फिर वो बुजुर्गों की नक्शे कदम पर चले। बाज बुजुर्गों का पढ़ा है मैंने कि वो फरमाते हैं शरीयत में तो 2.5% ज़कात है, 2.5%, 2.5%। हमारी ज़कात 100% है, तो सब दे देते थे कि रखना ही नहीं। तो फिर अब फिर हिसाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब दे दे ना। अम्मा ये कैसे देंगे, खून पसीने की कमाई, तो ये भी अल्लाह की राह में ही जा रही है ना। लेकिन खैर मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बुजुर्गों का अमल है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि सारे का सारा दे दे। अगर करे तो मना भी नहीं है उसको, जबकि फिर ये नहीं कि खुद मोहताज हो जाए और भीख मांगता भी रहे, तो इजाजत नहीं है। या बाल बच्चे भूखे मरे, समझे, तो भी इजाजत नहीं है। ये ख्याल रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए कुछ बचा कर नहीं रखते थे दूसरे दिन के लिए। अहले बैत अपने घराने को साल भर का खर्चा दे देते थे। ये भी ख्याल रखना कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे बाल बच्चे भी वही करें, तो इसको इसका मुकल्लफ बनाऊं ये जरूरी नहीं है। खुद ब खुद करें या तरगीबन वो करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये कि हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि ये वही करें। आप सारा साल रोज़ा रखें तो बोले मेरे बाल बच्चे भी रोज़ा रखें, बच्चों की अम्मी भी रोज़ा रखे, घर में चूल्हा ना जले, तो ये जुल्म हो जाएगा। फिर कि शरीयत ने ये वाजिब नहीं किया ना कि ना खाए सारा दिन रोज़ा रखे सारा साल, या पूरे रजब के रोज़े रखे, पूरे शाबान के रोज़े। तो ये शरीयत ने इसका हमको मुकल्लफ नहीं किया कि रखने पड़ेंगे। हाँ, रमज़ान में भी चूल्हा बंद करने की कोई तरकीब नहीं है कि चूल्हा नहीं जलना चाहिए। छोटे बच्चे या बाद औरतें जो होती है इस्लामी बहनें, उन पर मखसूस दिन होते हैं जो रोज़ा नहीं रखते, उनको रोज़ा रखना हराम होता है। अब वो खाली हवा खाएगी क्या? खाना तो चाहिए ना उसको। तो यूँ समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं कि चूल्हा ही बंद करवा दिया कि नहीं रमज़ान में सब पर पाबंदी नहीं। नाबालिग बच्चे, इन पर रोज़ा फ़र्ज ही नहीं है। तो अब ये कि 5 साल का 6 साल का बच्चा, तो उसको नहीं दूध गर्म करके पिलाओगे या रोटी नहीं खिलाओगे, उसको खाना नहीं खिलाओगे। तो अपना जो करना है नेकी का काम, नवाफिल के लिए कह रहा हूँ। फ़राइज़ के मसाइल है कि कब ज़बरदस्ती भी करवाना है, बात सूरत ऐसी है, समझे। लेकिन जनरल मतलब नवाफिल में हम मजबूर नहीं करेंगे अपने घर वालों को कि वो भी ऐसा ही करें। आपने कुफले मदीना लगाया है,
बात नहीं करना चाहते, फजूल बात, बहुत अच्छी बात है, 100% अच्छी है, लेकिन अब घर में लड़ाइयाँ करो, झगड़े करो, यूं करो तो फिर तो वो तो जुल्म हो जाएगा ना। कि जब फजूल बात में शरीयत में गुनाह नहीं है तो आप इसको धमकियां दे, झगड़े कर रहे, गुस्सा कर रहे, तो आप भी बोलते रहे। अपना बोलना अपने को नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन वो जुल्म हो रहा है, इससे तो बच जाएंगे ना। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अल्लाह तौफीक दे कि हम मतलब कम गो बन जाएं, कम बोलने वाले बन जाएं। फजूल बात, काम की बात करने में तो मना ही नहीं है ना। दीन की तबलीग, नेकी की दावत, तो ये तो बोलने के जरिए भी होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है बोलकर नेकी की दावत देना। तो ये देने में कुफले मदीना का कोई मतलब रुकावट नहीं है, खामोशी या सुकूत और इसकी रुकावट नहीं है। बोले अच्छा बोले, वरना चुप रहे। हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस का एक हिस्सा है कि या तो अच्छा बोलो या चुप रहो। जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो या तो खैर बात करे, अच्छी बात करे, भलाई की बात करे, या चुप रहे, खामोश रहे। तो अल्लाह कर इस हदीस पर अमल करने वाले बन जाए। मैं कहता हूं कि सारे फसाद, घरों के फितने, झगड़े सब दम तोड़ जाएंगे। बोलेंगे नहीं जब फालतू बात, झगड़े को अच्छी बात में नहीं होते, फालतू बात। आप प्यार से किसी को बात करोगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे, तो कौन काटला पकड़ के बोले है गाली दे, दुआ क्यों देता है मेरे को? दुआ देंगे तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। अच्छी बात किसी की मतलब पीठ थपकेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, मुस्कुरा कर बात करेंगे, नरमी से बात करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेगा आपसे यार। माहौल ऐसा बनेगा, मक्का मदीना, मीठा मदीना, बकी बकी, रमजान रमजान हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी, अभी माह रमज़ान में घरों को सजाने के हवाले से आपने तरगीब भी इरशाद फरमाई है, और इस्तकबाल माह रमज़ान की तैयारियों का आगाज़ भी एक इस्लामी भाई उनकी कर दिया है, वीडियो भी हमें मौसूल हुई है, आइए देखते हैं। माशाअल्लाह, शुरुआत हो गई है। माशाल्लाह लाइटिंग भी की है मुख्तलिफ अंदाज से, माह रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से माशाअल्लाह मुख्तलिफ सजावटें भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। जल्दी जल्दी आप भी सजावटें करें, हमको भेजें मदनी चैनल को। अगर चलाने जैसा हुआ तो चलाएंगे, कि ये बनाना भी एक फन है। अगर चलाने जैसा हुआ, सही अंदाज में बना होगा तो ये चला देंगे इंशाअल्लाह। हाँ हाजी इमरान कुछ बोलना चाहते हैं। लाइटें वगैरह भी जो है ना ये मिल जाती हैं। अगर आप जो जिनको माह रमज़ान में सजावट करनी है तो उनको चाहिए कि वो राब्ता कर लें। दुकानें वगैरह बहुत होती हैं हमारे यहाँ, मार्केटों में चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसे कि गैलरी पर, बिल्डिंग पर लाइटें वगैरह लगाने पर, खिड़की पर, ताकि बाहर देखने वालों को भी लगे कि ये माह रमज़ान की सजावट का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो जिस तरह 12वीं शरीफ में हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लाइटें लेने जाते हैं तो हमें लाइटें मिल जाती हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, चंद सैकड़ों रुपए के अंदर इंशाल्लाह 100, 200, 300 रुपए में भी कुछ ना कुछ आप हिसाब किताब बना लेंगे, अगर आपका जहन है, और जहन होना भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें यहाँ हमारे यहाँ, जैसे अब कराची में मदनी मुज़ाकरा हो रहा तो कराची में, तो जहाँ मैं हूँ, मैं इसमें नवाबशाह में हूँ, तो यहाँ है, तो मुख्तलिफ शहरों में मिल जाती है। अगर आप ढूंढना चाहें, करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला ये तरकीब बन जाएगी। और जो अपने पूरी इमारत और बिल्डिंग सजाना चाहे, अमीर सुन्नत का इंशाअल्लाह मकान आलीशान हो जाएगा, और है ही मकान आलीशान बेत रमज़ान, तो माशाअल्लाह वो भी सजेगा, बैतुल अमान भी सजेगा इंशाअल्लाह। कई और घर हैं जो अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम में सजाने की नीयत कर रहे होंगे, तो आप भी कर लें इंशाअल्लाह नीयत। आपके यहाँ भी मदीना मदीना हो जाएगा, मक्का मदीना, रमज़ान रमज़ान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये थोड़ा सा जज्बा होगा तो हो जाएगा इंशाअल्लाह उल करीम। अब मसला ये कि जैसे कि बाहर मुल्कों में, अरब दुनिया में, अरब शरीफ में, यानी मैं हैरान हूँ, इसको थोड़े दिन हो गए, ये शाबान ही की बात है, जब मैं पाकिस्तान अभी पहुंचा भी नहीं था, न शबे बरात से पहले की बात है,
वो ऐसी सजावटें कि साईं भाई ने भेजी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर अपना इस्लामी भाई था कि ये हमारे यहाँ ये फुला शहर में ये इस तरह रमजान की सजावटें जारी है, वो बिल्डिंगें सजी हुई हैं, रोड सजे हुए, मैं तो हैरान रह गया। अब उसमें कुछ मतलब मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने इनको दोबारा पैगाम दिया कि यूं यूं करके मुझे ये भेजो, फिर वो आई नहीं। अब पता नहीं मेरा पैगाम नहीं पहुंचा, रास्ते में रुक गया, डायरेक्ट तो मुझ तक पहुंचा नहीं था वो, वरना मैं आज चलवा देता यार। अब अल्लाह करे वो सुन रहे हूँ और भेज दें जो मैंने इनको अर्ज किया, जिस तरह कि इस तरह भेजो मुझे। मैं हैरान हूँ वाकई, ये अरब दुनिया वाले इतना रमजान शरीफ से मोहब्बत करते हैं, इतने दिन पहले सजा के रख दिया, जगमग जगमग ऐसी रोशनी। अच्छा, फिर ये कि इन ममालिक में जहाँ की मैं बातें कर रहा हूँ कि ये सजावटों का सामान सस्ता है हमारे यहाँ के मुकाबले में, माजरत के साथ। हमारे यहाँ बस जो भी इवेंट आएगा कमाओ कमाओ कमाओ, ये प्रॉब्लम है। और ये मतलब सजाओ सजाओ सजाओ। रमजान करीम आता है, खजूरें सस्ती हो गई, फल फ्रूट सस्ते हो जाते हैं, कमाल की बात है। वहाँ मतलब ये नोट किया है और लोग भी बताते हैं कि वो सस्ता हो जाता है। रमजान के जो आइटम है जो ये सस्ते हो जाते हैं। हमारे रमजान के आइटम आदमी क्या करे यार, रोटी खाए कि समोसा खाए। एक समोसे में 2 रोटियां बन जाएंगी, 4 रोटियां बन जाएंगी, पेट भर जाएगा। समोसे से पेट थोड़ी भरेगा एक से। तो हर चीज महंगी कर दी जाती है हमारे यहाँ। काश ये जो सुनते हैं इनको रमजान करीम की मोहब्बत ऐसी जोश मारे के भाई मैं नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बेचूंगा, लेकिन जो नफा करता हूं ना उस नफे को मतलब मैं वो 66% जो है ना वो माइनस कर दूंगा। और अल्लाह के इस प्यारे महीने, उम्मत के इस प्यारे महीने की निस्बत 66, ये अल्लाह लफ्ज का फिगर है। सोच कर बोला मैंने, लफ्ज अल्लाह, अल्लाह का ये इल्म अबजद के हिसाब से इसका फिगर बनता है 66 या 66। नफे में मैं इतनी, अब ये नफा भी है मेरे को पड़ी 10 रुपए की, अब मैं बोलता हूँ 40 रुपए की बेचूं और सब में एक का हो गया कि देखो 40 से कम नहीं बेचनी है। ये बाजारों में ये भी होता है, सब दुकानदारों में एक का होता है। अब किसी ने कम में मांगा ना तो बोला दूसरी दुकान से ले लो, हाँ वहां से ले आता हूँ। उधर फोन चला जाएगा, ये आ रहा है, मैंने इतना बोला है, इतने से कम नहीं देना है। अब उधर जाएगा तो इतने से कम मिलेगा ही नहीं उसको। ये इन लोगों का पैक्ट होता है जो मतलब बस महंगा है महंगा है महंगा है। सब क्या करें यार, 1 रुपया महंगा हुई तो ये ताजिरबाज 4 रुपये महंगाई कर लेंगे, 10 रुपये महंगाई कर देते। ये भी प्रॉब्लम है कि जितना बढ़ा उतना ही बढ़ाएंगे। लेकिन मैं हर फर्द की बात नहीं करता, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी हमें मिल सकते हैं कि जो गरीब को देखकर बोलेंगे ले जाओ, सैयद को देखकर हुजूर घर पहुंचा दूं। ये मैं ख्याली पुलाव पकाता हूँ, लेकिन ऐसा भी होता तो होगा ना कि एहतराम तो करते होंगे, गरीबों को रियायत करते होंगे। कोई गरीब टिकटिकी बांध कर कोई चीज़ देखता होगा, उठा के दे देते होंगे। कोई बच्चा किसी चीज़ को देखता होगा, उसको फबती होगी उसकी नज़र में, उठा के ले बेटे ले जा। ये भी करते होंगे, लेकिन शायद अशाज़ कल मादूम, कम ही करते होंगे। ऐसा करें तो हम लोग कहाँ के कहाँ निकल जाए। या तो मतलब बस हल में मस्जिद का बोर्ड लगा रखा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कब्र में साथ ले जाऊंगा, कब्र में 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ नहीं आएगा। नेकियां करेंगे तो साथ आएगा। गरीबों की हमदर्दी में दाम सस्ता कम से कम इनके लिए ही कर देंगे तो काम आ जाएगा। सैयदों की खिदमत करेंगे, इनको भाव कम कर देंगे इस वजह से कि सैयद साहब है, ये काम आएगा। रमज़ान करीम की सजावटें भी आपकी कब्र को रोशन करेंगी इंशाअल्लाह। नीयत ताज़ीम रमज़ान, दिखावा, दूसरों पर बर्तरी जताना, ये अलग बात है। फिर इसके जैसी बुरी नीयत वैसे उसका बुरा फल। जितनी नीयत अच्छी होगी इतना अच्छा फल। ये सब करना अल्लाह की रिज़ा के लिए, ताज़ीम रमज़ान के लिए आप करेंगे इंशाअल्लाह। भाव अपने सस्ते कर दें, गरीब भी कोई अच्छी चीज़ें खा लें, अच्छे फल खा लें। और जो भी रमज़ान शरीफ के आइटम हैं, खजूरें हैं अच्छी, अब खजूरें भी सारा साल स्टॉक होती होंगी, और क्या क्या इसको सफाई करके तेल लगा के चमका के ये निकलती हैं। और ये मतलब रमज़ान में सारा साल का स्टॉक निकलता है।
ٹھیک ہے جو بچ گیا نکلے, لیکن جیسا اس میں اگر فالٹ ہے نا وہ بتا دیا جائے, کوئی عیب ہے تو بتا دیا جائے. نیچے وہ عیب والی چھپا دی, اوپر نئی تازہ لگا دی, تو یہ دھوکے ہیں, حرام ہے, جہنم میں لے جانے والے کام ہے. جو ہے ویسا بتا دیں. روزی جو لکھی ہوئی ہے وہ کہیں نہیں جاتی آپ کی, تو سستا کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جو اہل سربت, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو مسجدوں میں افطار دیتے ہیں, وہ پچھلی بار برسوں میں سمجھاتا رہا ہوں, میں درخواست کرتا رہتا ہوں, تو کرتے بھی ہوں گے اسلامی بھائی, کہ آپ جیسا آپ کے محلے کی مسجد ہے اس میں ویسے ہی پھلوں کا انبار لگا رہتا ہے, پھر ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہوں گے ہر چیز, مطلب تو یار آپ باہر نکلو نا اپنے علاقے سے, آپ نہیں جا سکتے, اپنے ملازم کو بھیج دو. ایسی کالونیاں, ایسے غریب لوگ آپ کو ملیں گے, بچے جن کے کباب سموسے کے لیے ترستے ہوں گے, مثال کے طور پر, کہ پتہ نہیں 100 روپے کا سموسہ ہے 50 کا, مجھے نہیں پتا, لیکن ہوں گے مہنگے. تو اب یہ کہ غریبوں کے گھر میں افطار بھیجیں آپ. اب یہ آپ کو مطلب اسکیننگ کرنے کی ضرورت نہیں کہ گھر میں کون روزہ رکھتا اور کون نہیں رکھتا, یا غریب ہے بھی واقعی کہ نہیں, یہ اسکیننگ نہیں کرنی. مال زکات, اگر کوئی مالدار ہے, کروڑوں پتی ہے, اس کو بھی اگر آپ نے کھجور دے دی دل خوش ہوگا اس کا. یار مسلمان کو دل خوش کرنا ثواب ہے. تو آپ ان گھروں میں آپ انتخاب کریں, رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں, رشتہ دار کو سب سے پہلے دیں, یہ افضل ہے. پڑوسی, ان کے بھی حقوق زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں, پڑوس میں دیکھیں. پھر باہر نکلیں کالونیوں میں, غریب آبادیوں میں, کہ جہاں بیچارے ڈیلی ویجز پر کما رہے ہوتے ہیں, روز کا کمانا, روز کا کھانا. پھر کسی کو جوش آ گیا تو ہڑتال, نہیں ہڑتال کرو گے تو ٹا, وہ غریب کیا کھائیں گے یار, سمجھے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی کیا ہوتا رہتا ہے, سمجھے. اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت کرے اور وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے. بہرحال دنیا میں اب جہاں بھی ہیں, تو اس طرح کے لوگ جو بیچارے کم آمدنیوں والے ہوتے ہیں, ایسوں کو آپ دیکھیں, ان کے گھروں پہ افطار, اپنا بجٹ بنائیں کہ اس رمضان میں مثال کے طور پر 1,12,000 روپے کی افطاری بانٹوں گا. یہ زکوٰۃ میں نہیں ہے, زکوٰۃ فطرہ نہیں, بالکل صاف پیسہ اس کا دیں. 1,12,000 تو میں نے کہا 12 لاکھ کا کریں. اچھا رمضان کے 30 دن چاہیے آپ کو, سبحان اللہ, 30 لاکھ کا بجٹ بنا ہے. اچھا بہت, 30,000 کا بنا لیں, 100 یعنی 3,000 کا بجٹ بنا لیں کہ 100 روپے کی افطاری میں بھیجوں گا اپنی حیثیت کے مطابق. آپ جتنا دو گے انشاءاللہ آپ کو بڑھے گا. دیکھنا غریبوں کے دل کی دعائیں نکلیں گی, بچوں کے دلوں کی دعائیں نکلیں گی کہ آج ہمارے پاس بھی یہ آیا, آپ کے پاس کیا آیا تو ہمارے پاس یہ آیا. ایسے خوش ہوں گے, آپ کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارے مسجدوں میں بھی دیں, منع نہیں کر رہا, لیکن آپ دیکھ لیں مسجدوں میں جہاں جہاں بہت زیادہ مال ہوتا ہے وہاں والے جو کم از کم وہ باہر نکلیں. ویسے ہی باہر مسجد والے پانی پی کر بھی نماز پڑھ کے گھر جا کر کھا لیں گے مال. کوئی گھر خالی نہیں ہوتا جہاں اچھے عمدہ غذائیں روزہ دار نہ بناتے ہوں. یہ بھی ایک رزق میں برکت والا معاملہ ہے کہ اچھا اچھا کھانا مل جاتا ہے رمضان شریف میں, یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ دیں غریبوں, مسکینوں, سادات کرام, نیک بندے. بعد خطیب امام ہوتے ہیں, یہ میں بولتا ہوں صحیح بولتا ہوں, سفید پوش ہوتے ہیں, ان کی اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی, ان کے گھروں میں دیں آپ. واللہ باللہ تاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے گھر میں دیں, میں خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں مسلمانوں کی, غریبوں کی, سیدوں کی محبت میں, ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. میرے کو آپ دیں گے بھی تو شاید میں نہیں کھاؤں گا کہ پتہ نہیں کوئی پوائزن نہ ڈال دے. یہ مطلب ذرا مجھے ڈرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. تو میں مطلب یہ عام مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. بہت کچھ ہوتا ہے, ہم حرم طیبین میں اتنا لوگ کھلاتے ہیں, بڑی بات ہے, بہت ثواب کا کام ہے. لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جب مغرب کی نماز کا ٹائم آتا ہے نا, اذان ہو گئی, تھوڑا فکس ٹائم مل گیا, اب جو یہ سفرے سمیٹ کر جو خدام ہوتے ہیں وہ دھڑا دھڑ ڈسٹ بین میں, لاکھوں روپے کا مال اس میں ہوتا ہے. جی ہاں, لاکھوں, ہزاروں کا نہیں. اللہ آپ کو مدینہ دکھائے, اب آنکھوں سے دیکھ لینا. اللہ آپ کو مکہ پاک کی حاضری نصیب کرے, آنکھوں سے دیکھ لینا. اب وہاں پھر بھی ڈالے جانا یار, اپنے وطن میں, اپنے محلے میں, اپنے غریب خاندان میں, اپنے پڑوس میں دو نا یار, یہ کسی کے پیٹ میں تو جائے گا یار.
تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. چاہیں تو پیغامات دے سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اتنے لاکھ کا یا آمین اتنے آمین. کا ہم اس میں پہنچائیں گے. بازوں کا ایسا بھی یہ اس تو میں بازوں انشاءاللہ ہم کا چلائیں گے. بھلے آپ نام نہ دینا چاہیں نو پرابلم, آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, تو اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. جی فرمائیے. بازوں کا ایسا ہوتا ہے حضور کے کچھ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کہاں ڈھونڈیں گے, کہاں جائیں گے. تو اگر کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ بعض ایسے فیکٹری اونر ہیں یا بڑے لوگ ہیں جن کے پاس 1000, 1200, 1500, 5000, 10,000 یا اس سے زیادہ ملازم ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی فیکٹری میں یا ان کے کسی بھی سسٹم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ملازمین کی تنخواہیں 25,000, 30,000, 35,000 یا اس سے کم. اور ڈرائیور ہوتے ہیں ان کے, وہ خان سما ہوتے ہیں, تو مالی ہوتے ہیں, تو ان کے چوکیدار ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. اگر ان کی گنتی کرنا بیٹھے نا, تو اگر جیسے یہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملازمین کی تنخواہ تو اتنی ہے, تو تقریباً فیملی ممبر بھی ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں. اگر یہ کوشش کریں اور اپنے انہی فیکٹری کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بڑی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کتنے میں خود ایک سیٹ سے ملا تھا, اس کے 18,000 ملازم تھے اس کی فیکٹری کے اندر. اللہ تو اب اتنے ہزاروں ملازمین کے ساتھ فیکٹریاں اور اپنے جو بھی نظام لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ مطلب کام کریں جی, اس 5,000, 6,000, 10,000 ملازمین ہوتے ہیں فیکٹریوں کے اندر, اتنے بڑے بڑے یونٹ بنے ہوتے ہیں, بڑے سسٹم بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ صرف اپنے ملازمین میں اگر یہ کر دینا کہ یہ رمضان پیکیج کے طور پر, تو ان کے گھروں میں بھی پہنچ جائے نا, تو خود ان کے گھروں میں پہنچنا بھی ان کو تو کہیں ان کو اپنے مینیجر کو یا کیشیئر کو کہہ دینا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کو ماہ رمضان کے پیکیج میں یہ سب کر دینا, یا ان کے گھر کا ایڈریس لے لو, اپنے پہنچا دیا کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے؟ یہ دنیا بھر کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کی آواز الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے چاہا تو پہنچے گی, اور پہنچ بھی رہی ہوتی ہے کئی جگہوں پر. تو اگر ہر جگہ پر یہ ہو جائے, آس پڑوس والے اپنی بلڈنگ کو سنبھال لیں, ایک بلڈنگ کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری بلڈنگ کے اندر اتنے لوگ ہیں تو اس کو سنبھال لیں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آپ نے جو تحریک دی ہے نا, اگر یہ تحریک چل پڑی تو اللہ پاک نے چاہا تو کئی غریبوں کا ایسا بھلا ہوگا اور کئی غریبوں کے پیٹ بھریں گے. اندرون سندھ میں دیکھو تو پنجاب میں دیکھو تو KPK میں, بلوچستان میں, افریقہ کے کئی مسلمانوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے پاس کھانے کا نہیں ہے. حضور میں افریقہ کے ایسے ممالک کو بھی جانتا ہوں کہ جن میں اگر آپ یہ کہو نا کہ نیکسٹ سنڈے ہم آپ کو رائس دیں گے, چاول دیں گے, تو یہ پورا ہفتہ خالی چاول کا انتظار کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں کہ ہم کو اگلے ہفتے چاول ملے گا, نیکسٹ سنڈے ہم کو چاول ملے گا. ہمیں جانتا ہوں ان کو. تو ایسے ممالک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کھلاؤ نا جہاں کھلانا ہے, ان کے پیٹوں میں جائے گا باز تو بس کمال ہو جائے گا. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے, زبردست آواز دی ہے آپ نے, اللہ کرے لبیک, اور آپ کو آپ کے بات پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں. ماشاءاللہ, یہ آئیڈیا بھی صحیح ہے فیکٹری والی. لیکن یہ کہ فیکٹری میں جیسے کہ نوجوان کام کر رہا ہے, اب وہ کما رہا ہے, اب اس کو آپ نے دیا, اس نے جیب میں رکھ لے گا, تو پوسیبل ہو تو گھر میں کھانے کی چیزیں پہنچائے رقم کے بجائے رمضان میں, تاکہ ان کے بچوں کے منہ میں تو جائے یار. ورنہ باپ کو بھی دیں گے, پیسے دیں گے, تو اس کا بھروسہ کیا کہ یہ ان کو کھلائے گا. تو یہاں مطلب میری مراد یہ تھی کہ بس بچوں کو اچھی غذا ملے. بھلے روزہ نہیں رکھتا بچہ یار, پیٹ تو رکھتا ہے نا یار, تو اس کے پیٹ میں ڈالو یار, اس کا منہ میٹھا کرو, خوش کرو, چیزیں ڈالو کھانے کی ان کے پیٹوں میں. انشاءاللہ مطلب یہ کہ میٹھا پھل آپ کھائیں گے. اب آپ کے جنت میں ایسی نعمتیں کھائیں گے آقا کے پڑوس میں کہ انشاءاللہ آپ کو یوں ہوگا کہ سارا لٹا دیتا میں, اور نعمتیں یہاں ملتی مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسکرین پر نمبر دکھایا جا رہا ہے, اس میں آپ اپنی اچھی نیتیں بھیجیں. حضرت شیخ ابو عمر عثمان بن مرزوق قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ, امام اور سید یعنی سردار ہیں, اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ پاک کے راستے پر چلتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। शोबा मोहब्बत बढ़ाओ के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। मुल्तान से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए हैं और इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में देखने और सुनने की इत्तला है। इसी तरह नवाबशाह में माशाअल्लाह निगरान शुरा भी तशरीफ़ फरमा है और नवाबशाह में मुख्तलिफ़ शहरों से सिंध के जो इस्लामी भाई आए हैं उसमें सकरंड, दौड़ बांधी, सांगड़, टंडो आदम, शहदादपुर, जाम नवाज अली, सिंझोरो, खिपरो, मोरो, नौशेरो फिरोज़, भिरिया, किंडियारो, मेहराबपुर के इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमें मदनी मुज़ाकरे में इल्म व हिकमत के मदनी फूल अता फरमाते हैं, वहीं तौबा भी करवाते हैं, अपना मुरीद भी बनाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएँ तो आप जनाना अल्फाज दोहराएँ। इस्लामी बहनों को वालिद या शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को भी बेपीराना छोड़ें, अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद करवा दें। इसका तरीका ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दें। इसी तरह जो भी मुरीद होना चाहे, तालिब होना चाहे तो इस नंबर पर अपना नाम वगैरह भेज सकता है। जो किसी और पीर साहब से मुरीद है वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेगा, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद और तालिब होना चाहते हैं उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा शरीयत पर चलूँगा, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का ऐ अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादिरिया रज़विया की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। બાપા અત્યારે આપ મદની મુઝાકરામાં તરગીબ દેવડાવી રહ્યા હતા તો અમે કાફલામાં છીએ ને અમારા ઇસ્લામી ભાઈઓએ નિયત કરી છે। એક ઇસ્લામી ભાઈએ 26,000ની, એક ઇસ્લામી ભાઈએ 12,000 રૂપિયાની, 10,000 રૂપિયાની કે ઇન્શાઅલ્લાહ રમઝાનમાં ગરીબોના ઘરે ઇફતારી પહોંચાડવાની કોશિશ કરશું। દુઆ કરજો અલ્લાહ પાક બેહિસાબ બક્ષિશ भी કરે ને કબૂલ भी फरमावी ले। माशाअल्लाह, ये देखो बाहर मुल्क से आया है पैगाम, आवाज पहचानता हूँ। देखो यहाँ से भी आएंगे इंशाअल्लाह पैगामात। अल्लाह पाक आपकी नियतों का आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए, कबूल भी फरमाए, इस्तिकामत भी दे इन नियतों पर। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। इनका 1200 का स्टाफ है तो इन्होंने पहला ऐलान भेजा है कि मैं 1200 मेरा स्टाफ है और 1200 के फैमिलीज के अंदर जो है ना, मैं ये अमीर सुन्नत जो इरशाद फरमाया है तो मैं मेरे 1200 प्लस इनका स्टाफ है तो मैं 1200 प्लस स्टाफ के घर पे जैसा अमीर सुन्नत फरमाए ना, इनके घरों पे इंशाल्लाह ये सारा एहतमाम मैं करूँगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तकब्बल अल्लाह तआला।
अल्लाह पाक इनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, रोजी में खैर और बरकत दे। दोबारा जोर से इसी तरह की नीयतें तमाम में करें और भेजें। ये आतिका बाई कुछ हदीस सुनाना चाहती हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जन्नत में दाखिल होगा। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नियतें आना शुरू हो गई है। एक इस्लामी भाई की लाहौर से नियत आई है 2 लाख रुपए जो कि ये मदद करेंगे। एक की 12,000 की नियत आई है। मस्जिद भी नियतें आ रही है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि मार्केट में हमारे इस फील्ड के हवाले से इस तरह का रुझान है कि हम लोग 10% देकर एक प्लॉट का सौदा करते हैं और बाकी 90% का एक टाइम होता है, लेकिन वो उसी दौरान हम लोग जो है उसकी अपार्टमेंट्स वगैरह की बुकिंग भी कर लेते हैं। तो वो बुकिंग करना मतलब शरई लिहाज से सही है? इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइए। जी जी जायज है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आबद है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे पापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो हुफ़ाज़े कलाम के लिए मदनी मुज़ाकरा आ रहा है, तो क्या वो पूरे जो हाफिज बन चुके हैं उनके लिए है कि जो हाफिज बन रहे हैं या हाफिज बनने वाले हैं या हाफिज बनने की नियत रखते हैं उनके लिए भी है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे मैं घरों दुआ से नवाज दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आपको दावत है, इजाजत है। मैंने अर्ज किया था कि जो हाफिज बन रहे हैं वो भी आ सकते हैं, लेकिन जरा सभी आ सकते हैं कि जो हाफिज बनने की नियत करते हैं वो सबसे आगे आके बैठ जाएं ताकि हाफिज बनने लगे ना। ये 8 फरवरी को इंशाअल्लाहुल करीम हुफ्फाज का मदनी मुज़ाकरा होने जा रहा है। 8 फरवरी इतवार जी, कल है। हाँ कल इतवार है। कल 8 फरवरी इंशाअल्लाह हुफ्फाज़ किराम का, हाफिजों का मदनी मुज़ाकरा। ये हो सकता है बाहर कोई दूर दराज से आकर बैठ भी गए होंगे, आकर कल के लिए आए हैं ना। माशाअल्लाह तो हाथ उठा रहे हैं कैसे दीवाने आशिकाने कुरान, अभी जाके बैठ गए। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अल्लाह कुरान करीम की शफाअत आपको नसीब करे, आपके सदके मुझे भी। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह करीम कल फैज़ान मदीना कराची में एक बड़ी तादाद में हुफ़ाज़ और इमाम साहिबान, कारी साहिबान, नाज़रीन साहिबान और दीगर इस्लामी भाई भी शहर से आएंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी बहुत सारे मकामात पर इस्लामी भाई और हुफ़ाज़ इस्लामी भाई जमा होकर देखेंगे, बल्कि दुनिया भर में भी कई मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब बनेगी इंशाअल्लाह। और इस्लामी बहनों का घर का फरमाया था जो हुफ़ाज़। अच्छा, वो जैसे कि ये नहीं समझना हुफ़ाज़ को अलग कैटेगरी और हाफिज अलग कैटेगरी है। ये हाफिज की जमा हुफ़ाज़। मैं इसलिए हाफिज बोलता रहता हूँ कि क्या होता है हुफ़ाज़, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कौम में कई बार सुना है कि वो कुरान हाफिज बोलते हैं, हाफिज कुरान नहीं बोलते। नोट किया आपने? हाँ, कुरान हाफिज। तो सबको इन्हें हाफिज सबको समझ में आ जाएगा कि हाफिजों का मदनी मुज़ाकरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम हबीबुर रहमान मदनी है। मैंने 1994 के अंदर मैंने मदरसुल मदीना से कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और उसके बाद जामिअतुल मदीना से मैंने दर्स निज़ामी किया है और 2005 में मेरी फरागत है। 8 फरवरी 2026 को होने वाले मदनी मुज़ाकरे में जहां अमीर अहले सुन्नत दुनिया भर के हुफ़ाज़ की तरबियत फरमाएंगे, उस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की मैं नियत करता हूँ और मेरी तमाम हुफ़ाज़ से गुजारिश है आप भी इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। इस वक्त मैं ग्रैंड जामे मस्जिद बैरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी के अंदर जो है एज आ इमाम खतीब जो है फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पिंडी से आएंगे आप और कराची वाले बोलेंगे यार बहुत दूर पड़ता है। कराची का
कोई भी कोना हो, हर कोने से कराची के पिंडी बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा दूर है। तो अब कराची वाले तो निकल कर आ जाना 8 फरवरी को, चाहे तो अभी जाके बैठ जाए, अभी मदनी मुज़ाकरा जारी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह बहुत सीनियर मदनी, सीनियर हाफिज, आपके क्लास फेलो हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह बारकल्लाह। सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी अलमारूफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुजुर्गों की मजलिस में जहाँ जगह पाओ बैठ जाओ। आका का महीना, शरफ बुजुर्गी ओ एहसान लाया, बख्शिश हो या रब के शाबान आया। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयत कुर्सी पढ़ी, उससे जन्नत में जाने से सिवाय मौत के कोई चीज रोक नहीं सकती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। आखिर ऐसा क्यों कि 100 पीस का नोट बहुत बड़ा लगता है जब अल्लाह की राह में देना होता है, मगर जब खरीदारी करनी होती है तो बहुत छोटा लगता है। आखिर ऐसा क्यों कि कुरान पाक आधा घंटा पढ़ना भी भारी लगता है, लेकिन 2-3 घंटे फिल्म देखकर भी जी नहीं भरता। आखिर ऐसा क्यों जब फजूल और बेकार कामों में रोजाना घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन जुम्मे का बयान सुनने का वक्त नहीं होता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जानदार के साथ भलाई करने में अजर सवाब है। जो कौम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और खुदा की रहमत उनको ढांप लेती है और उन लोगों पर सकीना नाजिल होता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मुक़र्रबीन में उनका तज़किरा फरमाता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई प्यारे प्यारे बच्चों ने। अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। इनको माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार 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 मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। एक बच्चे ने कुछ सवाल भी किया ना कि आधा घंटा कुरान शरीफ पढ़ने में तो दिल नहीं लगता, माशाल्लाह 2-3 घंटे खेल कूद में लग जाएं, कि ये आखिर क्यों? मीडिया के उसमें वगैरह फजूलियात में तो पता ही नहीं चलता, टाइम ऐसे पास हो जाता है। इसका मैंने तफसीली जवाब पिछले हफ्ते दिया था, जो पिछले हफ्ते हुआ था या पिछले से पिछले हुआ था। वो शैतान जो है ना, वो जो गुनाह या फजूल काम से वो रोकेगा नहीं, नेक काम में वो मुसल्लत हो जाता है। छोड़ 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 तो बंदा यूं छोड़ देता है, नींद चढ़ती है, थकन लगती है फजूल बातों में, फजूल कामों में। ये तो फजूल तो फिर भी गुनाह नहीं होता, गुनाहों भरे कामों में ज्यादा दिल लगाता है शैतान। तो ये मतलब शैतान इसका खास कर मतलब ये इसमें कार फरमा होता है, तो इसलिए वो शैतान पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें कि वो नहीं चाहता कि कोई इबादत करे, तिलावत करे, नेकियां करे और जन्नत में चला जाए। तो इसलिए ये बहकाता है, वसवसे डालता है। तो हमें शैतान का मुकाबला करना चाहिए, इसको थू करना चाहिए, और दिल लगे या ना लगे, हम अगर इबादत करते रहेंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाएगा। एक बुजुर्ग का, बल्कि बाद बुजुर्गों के ऐसा है कि उनका कुरान पढ़ने में, तिलावत में दिल नहीं लगता था, तो फरमाया कि 20 साल तक इस पर हमने जिद्दोजहद की, दिल न लगने के बावजूद पढ़ते रहे, फिर 20 साल तक उससे नफा उठाया, दिल लग गया। मतलब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना, सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, ये मुहावरा है, आयत नहीं है, कि कोशिश मेरी तरफ से होगी और तकमील यानी पूरा करना ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। वो हदीस पाक एक पढ़ी थी मैंने, उसमें कोई किसी ने भेजा था, कुछ दोबारा पढ़नी थी, हाँ फिर जहन से निकली यार,
वो मैंने पढ़ा था एक हदीस अद्दुआओ गलत पढ़ गया था। हाँ तो ये इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, अद्दुआओ यरुद्दुल क़दा, यानी दुआ तकदीर को बदल देती है। ये वहां से एडिट करके इसको वहां शामिल कर लीजिए इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक उस्ताद की पोस्ट पढ़ी थी बाहर मुल्क में कि पहले मैं वो कहते मैं किताबों में जब पढ़ता था कि फलां बुज़ुर्ग सारी रात इबादत करते थे, सारी रात कुरान पढ़ते थे, फिर किसी का पढ़ता था वो सारी रात मुताला करते रहते थे, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि कैसे हो सकता है। लेकिन फिर आज के दौर में जब मैंने नौजवानों को देखा कि वो सारी रात मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, तो ये जो मुझे इश्काल और ये जो ख्याल मेरे दिल में होता था ये सारा ज़ाहिल हो गया कि जो जिस चीज़ के साथ मशगूल हो जाता है उसका दिल उसके साथ लग जाता है। माशाअल्लाह। तो वो काय में मशगूल देखा नौजवानों को? सोशल मीडिया वगैरह। सोशल मीडिया चाहिए, आजकल की बात है। जी जी। मैंने एक इमाम साहब को देखा था, उन्होंने मुझे बताया था वो कि मैं रोज का एक कुरान शरीफ खत्म करता हूँ। ताज्जुब की बात है यार, यहाँ एक रुकू नहीं पढ़ा जाता अपने से, तो एक कुरान रोज का कैसे खत्म करते होंगे। अपने काजी मस्जिद है ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी एरिया में कराची में, उसके इमाम साहब थे, बरसों हो गए, वफात पा गए, अल्लाह गरी के रहमत करे। उन्होंने मुझे बताया था किसी से कोई लिप चिप नहीं खामोशी से अपने, वो इनकी मस्जिद थी, मस्जिद इमामत, और साथ में कोई मतब शायद रखा था, तो उस पर बैठते थे। ये मस्जिद की ही दुकान थी, किराए पर ली होगी इन्होंने। तो इस तरह मतलब ये इन्होंने मुझे बताया था, मेरा इनसे अच्छी तरकीब थी। तो है मतलब पढ़ने वाले यूं भी कर लेते हैं, अपने से नहीं पढ़ा जाता है। वाकई शैतान इतना तंग करता है कि बस अल्लाह इससे जान छुड़ाए हमारी। अब यही कि मशगूल अपने जिस काम में, गलत काम में भी बंदा मशगूल हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता, तो ये तिलावत में भी जो मशगूल होगा तो हो जाएगा। माशाअल्लाह 12 कुरान शरीफ ख़त्म करना, इस तरह की तो मुझे बाहर हैं, और मैंने यहाँ शायद बयान भी किया है कि किसी हाफिज साहब ने 12 मरतबा कुरान शरीफ रमज़ान में ख़त्म किए थे, 12 या 15 ऐसे। अब पूरा फिगर भूल गया हूँ मैं, तो मैंने शायद बताया था। हिम्मत करें, रमज़ान माह कुरान ठीक है असल माह नुज़ूल कुरान, तो नाजिल हुआ है कुरान करीम माह रमज़ान में। तो इसकी तिलावत जितनी हो सके आदमी करे तो अल्लाह दिल लगा दे। माशाअल्लाह करने वाले करते हैं, लगे पड़े होते हैं तिलावत में, तो करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि लाहौर में आपकी तरगीब पर एक फैक्ट्री उन्होंने अपने 550 मुलाजमीन की मदद के लिए रमज़ान करीम के पैकेज देने की नीयत की है, इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुकन शुरा हाजी अतहर अतारीन का भी पैगाम मौसूल हुआ है। कह रहे हैं अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक के शहर मापुतो में पिछले सालों की तरह इस साल भी अतराफ गाँव की मसाजिद में बल्कि बाज़ पूरे गाँव वालों को जमा करके पूरे माह रमज़ान रोज़ाना इफ्तारी करवाई जाएगी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मस्जिद भी नियत आई है, 50,000 की भी एक नियत आई है, 26,000 की भी एक नियत आई है। याफुर भाई की तरफ से फैज़ान रमज़ान 200 किताबों का मैसेज आया है आपके लिए। फैज़ान रमज़ान किताब 200। सुभान अल्लाह। आप जल्दी जल्दी मेरे वकील बन जाओ, मेरी वकील की हैसियत से कब्जा करके जल्दी इसको बांटो। हाँ, रमज़ान से पहले पहले बस हाथों में चली जाए, और अल्लाह करे इस्लामी भाई पढ़ें, इस्लामी बहनों में भी भिजवा दें। इस्लामी भाइयों को तो फिर भी बंटता रहता है, तो उनसे तरकीब बनाकर इंशाअल्लाह। इस्लामी बहनें मुफ्ती शाहिद मदनी के पास जी, तो आपको तो पता होगा जी, इनका काम इनके पास है रुकन शुरा की हैसियत से। इंशाअल्लाह 16 फरवरी स्पेशल ट्रेन भी लाहौर से आ रही है। माशाअल्लाह। अच्छा, जिन्होंने ये मुझे वो तो 200 फैज़ान रमज़ान दी ना, अल्लाह इनको
बहुत सारा अजर अता फरमाए। अल्लाह पाक इनका हाथ यूं रखे, कभी यूं ना हो। यूं माने देने वाला, यूं माने मांगने वाला, लोगों से मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप बोलोगे देने वाला, हाँ हदीस है पाक, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नमा अना कासिमुम वल्लाहु युअती, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ, बांटता हूँ। रब है मुअती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना इलियास कादरी, नवाब शाह डिवीज़न यहाँ जमाए हुजूर, क्या इन्हें भी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इत्तकाफ़ के लिए आने की इजाज़त है? इनकी तो मिन्नतें करनी पड़ेगी। नवाब और शाह दोनों का मजमुआ है। नवाब आपको ना कोई सुस्त होगा, नवाब साहब है, आने की इजाज़त है। शाह बादशाह, इनकी मिन्नतें करके आप जमा करो यार इनको। हाँ भाई नवाब शाह वालों देखो, ये नवाब शाह वाला बेटा हुआ मुस्कुराता हुआ। नवाब शाह में काफी साल रहेंगे, आज शाहिद ना नवाब बने ना शाह बने, ये माशाअल्लाह खादिम बनकर दीन की खिदमत कर रहे हैं। वैसे ही मैंने तफन्नुन में अर्ज किया, तो नवाब शाह वाले आप देखो इनको जोश आता है कि नहीं, कितने आते हैं। एहतिकाफ में 1 महीने का माह रमजान का एहतिकाफ, हिम्मत करें। या जितने कोई ट्रेन चलेंगे नवाब शाह वाले, नियत करने वाला नवाब शाह डिवीजन से वैसे तो ट्रेन चलनी चाहिए। हाँ अतराफ में कई शहर हैं, यहाँ के सैयद साहब कई बार गया हूँ नवाब शाह में, तो ट्रेनें भी दो मांगेंगे, 1 मांगेंगे। माह रमजान की कोई रमजान एक्सप्रेस चला दें यार। माशाल्लाह नवाब शाह में अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा मौजूद है और वहाँ पर भाई डिवीजन निगरान नारा तो लगा, ऐलान तो कर रहे हैं डिवीजन निगरान, नवाब शाह डिवीजन से 1 ट्रेन रमजान एक्सप्रेस पूरे माह के लिए। फिर चांद रात को हाथों हाथ काफिले भी सफर करते हैं। चलो क्या तय करते हैं लोग, आप मुशावरत करके हमको दे दें तो इसका फिर मदरी चैनल पर इंशाअल्लाह तस्करा हो जाएगा। लाहौर से जो स्पेशल ट्रेन 16 फरवरी को आ रही है उसका भी नाम अगर अता हो जाए। लाहौर से, हाँ अब ये रमजान एक्सप्रेस तो नवाब शाह वाले नहीं चलाएंगे कोई फाइनल नहीं है, वो तो ऐलान कर दिया ना हम चलाएंगे। अब इनको नाम क्या दूं यार, रमजान एक्सप्रेस नाम ले लूंगा तो कहीं वो ठंडे ना हो जाए वो नवाब शाह वाले, तो मैं इनका नाम वापस नहीं लेता। अब एतिकाफ एक्सप्रेस ये रख ले। एतिकाफ रमजान की मशहूर इबादत है ना, एतिकाफ एक्सप्रेस माशाअल्लाह। लाहौर से इंशाअल्लाह ये तो इन्होंने डन किया है, अल्लाह इनके कहीं की लाज रखे। ये लाते हैं लाहौर वाले, तो लाते हैं माशाअल्लाह। ये इनको ज्यादा फिर छेड़ना नहीं है, अभी 2 ट्रेनें उठा लाएंगे जब समा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में। समझे, न जगह तंग है न दिल तंग है, खिलाएंगे पिलाएंगे हम बस आपको इफ्तार सहरी में इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के जरिए मोहम्मद अहमद हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बीवी शोहर की इजाज़त के बगैर
خود مائکے چلی جائے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ تو اب صورتحال بتا کر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیا جائے. اب شوہر دکھاتا ہو اڑا دوں گا، آئے دن دھمکیاں دیتا ہو، کیا کرے گی؟ میں بولوں گا گولی کھا لے، مگر پڑی رہے میں کیسے بولوں؟ تو کیا صورتحال ہے، کیوں چلی گئی، یہ دارالفتہ اہل سنت کو تفصیل بتا کر ان سے فتویٰ لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے بنت حافظ محمد اکرم، یہ ان کا سوال موصول ہوا ہے. اگر کسی مدرسے میں بچہ بلا عذر چھٹی کر لے تو بعض اوقات جرمانہ فائن لینے کے بجائے اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جبکہ جرمانہ لینا شرعاً درست نہیں سمجھا جاتا. تو اس صورت میں بچے یا اس کے سرپرست سے صدقہ کروانا کیسا ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں. اگر ترغیب دلاتے ہیں نا تو حرج نہیں ہے. لازم کرتے ہیں کہ دینا ہی پڑے گا تو پھر وہی جرمانے کی صورت ہی ہے. نواب شاہ ڈویژن والے 1 ماہ اعتکاف کے لیے سفر کی نیت کر رہے ہیں، آپ دعا فرما دیں. ٹرین کا نیت انہیں کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ استقامت دے، جلدی خوشخبری بھیجیں. ابھی آئندہ ہفتہ جو ہے نا، یہ استقبال ماہ رمضان کا زوردار مدنی مذاکرہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. دھوم دھام سے فیضان مدینہ بھی بھر جائے انشاءاللہ، اور اطراف کی جتنی جگہ ہے نا ہماری فیضان مدینہ کی، عالمی مدنی مرکز کی، سب آپ فل کر دیں کہ یار یہ عاشقان رمضان ہے بھائی. تو پورا جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، ہم گئے تھے، جگہ نہیں ملی ہم کو. لوگ یوں بات کریں، یہ نہیں کہ میں جگہ جگہ گیپ تھا، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ الکریم دھوم دھام سے استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. رکن شورا حاجی امین قافلہ، ان کا میسج آیا ہے کہ کینیا میں بھی 3 مقامات پر افطار کی ترکیب کروائی جائے گی انشاءاللہ الکریم. یہ سارے مہینے کا ایک افطار پارٹی نہیں ہے، گھروں میں یا جہاں ممکن نہیں ہوتا گھروں میں دینا، جو غیر مسلم اور مسلم اور سب گڈ مڈ رہتے ہوں گے، سمجھ نہیں آتی ہوگی، تو اس لیے وہ مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں. اس میں بھی غیر مسلم آ جاتے ہوں گے. یہ اسلامی ملکوں میں بھی بعض جگہ مطلب یعنی کہ کیمپ وغیرہ ٹینٹ لگا کر کھلاتے ہیں، اس میں بھی سنا ہے کہ غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو اب اس کا تو ذرا کیا حل نکالے؟ تو اس لیے مسلمان کو طاق کر دے نا بالکل کہ بھئی یہ ہے مسلمان، پتہ ہو، اس کے گھر پہ جائے تو مکہ مدینہ جو جیسے جو ممکن ہو کریں تو صحیح. آج جو مدنی مذاکرہ ہے اس کا نمبر ہے 2612. ماشاء اللہ، 26 کی بھی نسبت ہے، 12ویں 12ویں شریف کی کی بھی نسبت ہے، سبحان اللہ، اس میں شامل. ہمارا سلسلہ تجربات کی دنیا، موبائل اب ہر ایک کے ہاتھ میں. دنیا میں اس وقت تقریباً 5.5 ارب سے زیادہ موبائل یوزر ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا ٹارگیٹ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں 2 3 موبائل ہونے چاہیے. ایجڈ پرسن بھی اپنا بہت سارا وقت جو ہے نا وہ فضولیات میں یہ پھر نکل جاتا ہے. گھروں کے نوجوان بزرگوں کو موبائل فون میں اچھی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر دیں جو وہ نہیں کر پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، ان کی بزرگی سنور جائے گی. کچھ نہ کچھ ایسی انوائرمنٹ کو جو ہے نا ڈیولپ کرنا چاہیے کہ بچوں پہ اس کا برا اثر نہ پڑے. آج چیزیں بہت فاسٹ اور ٹیکنالوجی بیس ہو رہی ہیں، لیکن خرابیاں بھی اسی طرح تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں. پہلے کے دور میں جب باپ کو بچوں کو بلانا ہوتا نا، بھائی جاؤ بھائی بلال کا ہے، بلال کو بلاؤ، تو کہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وائی فائی بند کریں، گھر میں جو جہاں ہوگا نا نکل آئے گا باہر. آپ کے دور میں نا کی پیڈ والے موبائل تھے، اور نیو جنریشن کے دور میں ہے نا ٹچ اسکرین والے موبائل ہے. نیو جنریشن کا تو قصور نہیں ہے نا، ان کے دور میں ایجاد ہوا تو اس کو یوز تو کریں گے نا. امین، آپ نے نوٹس کیا باتوں باتوں میں کیا بول گیا؟ ہم لوگ کون سے دور کے لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ 15 دن کے لیے اگر ان کو کہیں بند کیا جائے تو اصل حقیقت جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی کہ کیا ہے. انشاءاللہ الکریم دیکھیے پروگرام تجربات کی دنیا، جس کا موضوع ہے موبائل اور ہم. 8 فروری 2026 بروز اتوار مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے مدنی چینل پر.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بے وضو قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں گلوز پہن کے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں میرے اور میرے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت۔ ماشاء اللہ، جو آواز ہے یہ تو کوئی نابالغ بچے کی لگ رہی ہے. نابالغ ہے تو چھو سکتا ہے بغیر وضو قرآن کریم کو، نہیں تھی عادت دلوانا چاہیے کہ با وضو قرآن شریف کو چھوئے. البتہ جو دستانے پہن کر گلوز ہے نا، دستانے پہن کر بڑا جو ہے وہ قرآن شریف نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ابھی یہ ہاتھ کے تابع ہو گئے، تو اس لیے وہ دستانہ اتارا، مثال کے طور پر اتار لیا. اب یہ کہ اس کو یوں قرآن شریف کو احتیاط سے کہ کوئی انگلی کا حصہ ڈائریکٹ قرآن شریف پر ٹچ نہ ہو، تو یوں اس سے یوں اٹھا لیا نا اس کو تو اٹھا سکتا ہے. جیسے رومال ہے، تولیہ ہے، کپڑا ہے کوئی، تو اس سے جو بدن کے تابع نہ ہو، بدن سے یعنی کہ وہ ان ٹچ ہو، جدا ہو، تو اس سے یوں اٹھا لے. ان ٹچ سے مراد ہے کہ جس کو پہننا ہے، جیسے چادر ہے پہنی ہوئی ہے تو اس سے نہ اٹھائے، چادر نکال لے. تو اب بھی ہاتھ کو تو ٹچ کر رہی ہے وہ ہاتھ سے، تو نکال کے اب چادر سے اٹھائے گا تو قرآن شریف بے وضو اٹھا سکے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شفاقت علی بات کر رہا ہوں، ضلع پسنی، تحصیل اڑماڑا، بلوچستان. بچے کا کرنا حقیقہ، تو حقیقے میں سب رشتہ داروں کو شامل کرنا ضروری ہے، یا پھر بچے کا، جس بچے کا حقیقہ کرنا ہے اس کا ہاتھ لگوانا ضروری ہے جانور کو؟ عقیقہ مستحب ہے، والد بچے کا عقیقہ کرے 7ویں دن، 14ویں دن، زندگی میں جب بھی 7واں ہو نا اس کا، تو یہ اس کا حساب یہ رکھا ہے کہ جیسے کہ جمعرات کو بچہ پیدا ہوا تو زندگی کے ہر بدھ اس کی وہ 7واں دن پڑے گا، تو وہ بہتر ہے. اس آگے پیچھے بھی کر دیا تو نو پرابلم. عقیقہ کسی نے نہیں کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مستحب ہے. اچھا، اب رشتہ داروں کو شامل کرنا یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک نا. سارا گوشت خود کھا گئے تو بھی صحیح ہے، لیکن رشتہ داروں کو شامل کرنا بہت مناسب، بلکہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ ان کی دل شکنی ہوگی. اچھا، اور ہو سکتا ہے غیبتیں بھی شروع ہو جائیں، گناہوں کے دروازے کھلے اور قطع رحمی کی صورت بنے، خلاف ہو جائیں. تو صلہ رحمی کرنی چاہیے اور رشتہ داروں کو کبھی بھی کوئی بھی آپ کا ایونٹ ہو نا، رشتہ دار کو نہیں چھوڑا کریں. اچھا، یہ آپ کو دعوت نہیں دیتے کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ کہ بحرشت میں لکھا ہے کہ جو تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، تو یہ تو صلہ نہیں ہوا، یہ تو مطلب عوض ہو گیا، بدلہ. اس نے کیا تو ہم نے بھی کر دیا. نہیں، وہ نہیں کرتا پھر بھی آپ کریں تو آپ مرد ہیں. وہ ہے نا کہ احسن الی من اسا، اس سے پہلے کیا ہے فارسی کا، وہ کئی بار بولا ہے میں نے، ابھی ذہن سے نکل. بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. مرد تو تب مرد ہے، تو مرد تو تب ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. اور قرآن کی بھی تعلیم ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو یوں مطلب یہ کہ وہ دعوت نہیں دیتا ہم نہیں دیں، یہ نہ ہو. تو عقیقہ ہو، ختنہ ہو، جو بھی تقریب آپ کے گھر میں ہو تو اس میں رشتہ داروں کو آپ نہ فراموش کریں کہ ان کے دل میں میل آئے گا، بال پڑے گا، پھر یوں ہی تو پھر فاصلے بڑھتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. پھر یہ کہ انہوں نے آپ کو پورے گھر کی دعوت دی تھی، آپ نے بولا کہ ایک فرد آ جائے، یہ بھی خرابی پیدا ہوگی. تو اس لیے وہ دل بڑا رکھے. یا پھر تقریب، میرا مشورہ ہے کہ پھر یا تو کرے نہیں، تقریب کر کے خاندان میں پھوٹ ڈالنا، تو وہ جو ایسی تقریب ہے وہ نہ بھی کرے تو چل جائے گا. جیسے اب عقیقہ کرنا ہے تو بے شک کرے، دیگے نہ چڑھائے. گوشت بانٹنا ہے تو گوشت تو بانٹ سکتا ہے، اتنا سارا ایک بکرے میں گوشت تو نکلتا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا، اتنے کتنے رشتہ دار، کروڑوں لاکھوں رشتہ دار تو ہوتے نہیں ہیں، گنتی کے رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ یوں مطلب محبت سے ان کو تھوڑا تھوڑا خود بھلے بٹی منہ میں نہیں گئی، نو پرابلم، آپ رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں.
تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ جو ہم فارمولے بتاتے رہتے ہیں، اللہ کرے ہم سب کو اس پر عمل مل جائے نا، عمل کی توفیق، جھگڑے ختم ہو جائیں یار، کھچم تانی ختم ہو جائے اور محبتوں کا ماحول بن جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.